आपने रिकॉर्डिंग सुनी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Today we are starting our webinar, and very important webinar on this one. And very interestingly, my wife called me Dr. Webinar, not Dr. Mulazim. She called me Dr. Webinar. It's my honor anyhow. To start today's webinar, over to you, Professor Rashid Mehmood. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون। ये सूरत नहल है, इसकी आयत नंबर 69 है। मफहूम तर्जुमा है, फिर हर किस्म के फलों से अपनी खुराक हासिल करो, फिर उन रास्तों पर चल जो तेरे रब ने तेरे लिए आसान बना दिए हैं। इसी तरह उस मक्खी के पेट से वो मुख्तलिफ रंगों वाला मशरूब निकलता है जिसमें लोगों के लिए शिफा है, यानी शहद की बात हो रही है। यकीनन इस बात में उन सब लोगों के लिए निशानी है जो सोचते समझते हों। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Thank you so much. This webinar is not only to create the awareness about the sciences, but also to create the awareness about the Quran. We start every webinar with the name of Allah and the holy book Quran. Thank you so much, Dr. Rashid Mahmood. Today we have two speakers. One of the speaker is Professor Luqman and other is the Imran Abbas. And both are no doubt Pakistani, but now working in Saudi Arabia. And the way Dr. Professor Luqman is the second best graduate graduate as medical college. He got almost more than 5 medals, I think. And then he also got the best graduate award of the FCPS. Then he started his life as King Edward Medical College, then King Edward Medical University, and as a surgeon. And now, Alhamdulillah, he is a renowned best surgeon, Papa GI, oncologist. You can visit his CV from the LinkedIn and other in the Googles. And over to you, Professor Luqman. Assalamu alaikum, sir, and to all the attendees, very kind of you to give me this opportunity to speak on a subject which I'm like a recent convert to, and we were just discussing before the start of the webinar that the idea that we are going to discuss now is something that is really very interesting and novel. So let me start with my presentation, and then we'll move on with that. Dr. Luqman, try to keep it in Urdu. I think most of the people in Pakistani, after that, most try to cannot speak English. I think where you can speak on Urdu, try it to in Urdu. Thank you. Thank you, sir. I will try my best to speak in I Urdu. understand it's Sir, very आपको पता है ना difficult. सर, Urdu तो बड़ी प्यारी language है, and obviously we all love it. लेकिन at times it's a bit, वो एक flow में जब बंदा बोल रहा होता है तो it becomes, a bit. I want to start my slideshow. Yes, that's how it is. Yes. Let's go back. Let me tell you first who I am. पहले तो बात ये होनी चाहिए कि मैं कौन हूँ. And we all wear, these जो हम ये postnomials लगाते हैं. They are called postnomials, जो हमारे नाम के बाद चीजें लगती हैं. ये basically is just like reading a genome or reading a kind of a life of a person. कि ये बंदा क्या करता रहा है, where he has been, what he has been up to, और उसकी journey कैसी है. So whatever we earn, we are reflected in these postnomials.
And that's what I am. My name, Luqman Osman. And different times when I was in Pakistan, now I'm spending all my time in Saudi Arabia. But currently I'm on a journey for advanced and robotic minimal access surgery in the field of upper gastrointestinal and bariatric surgery. Bariatric surgery वो सर्जरी है जिसको आप वजन की सर्जरी कह सकते हैं, वजन के इलाज की सर्जरी कह सकते हैं, लेकिन इसकी भी बहुत जिहतें हैं, इसके भी बहुत रुख हैं, इसके भी बहुत सारे कॉर्नर्स हैं जिनको अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया और वो एक्सप्लोर हो रहे हैं. तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है. दिस इज बेसिकली अबाउट द सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस. इट्स लाइक अ शॉक. एक शॉक स्टेटमेंट है कि इज इट पॉसिबल कि डायबिटीज हो, टाइप 2 हो और उसकी सर्जरी हो रही हो. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट के किस तरीके से एक यानी इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू थिंक अबाउट. ये कोई डायबिटिक फुट की सर्जरी नहीं हो रही है या किसी लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन की सर्जरी नहीं हो रही है. ये इटसेल्फ टू ट्रीट डायबिटीज टाइप 2 हो रही है. और टाइप 2 डायबिटीज वी ऑल नो व्हाट इट इज. और टाइप 2 डायबिटीज जो है वो बेसिकली इस इन टू सम इट शॉर्ट इट्स बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, हाइपरलिपिडीमिया होना शुरू हो जाता है, एंड सो फोर्थ. द पेशेंट गोज डाउन and we all know where he ends up. Lots of failures of vital organs. That's how it is. Now, Professor Luqman, we are lucky Dr. Mahmood Ayad, Professor Mahmood Ayad, Chancellor is here. Thank you so much, sir. We understand it was very difficult for you to join. You are in Sakkar. Thank you so much, sir. Welcome, sir, to this webinar. I'm very grateful that you are coming, that you are with us, and hopefully we will benefit from your views as well on this subject. And I'm really honored, and I'm honored personally that you are here with us on this webinar. So let me start again first from the very beginning. So the topic today is the surgical management of type 2 diabetes mellitus. And type 2 diabetes mellitus is a disease which is, we all know as hyperglycemia, is a very common disorder, and lots of people, it's a common talk. But the issue is how to treat it surgically. Now, this is, if you look at this slide, basically, these are the procedures which are right now comprise the field of bariatric surgery. Somehow the other, I don't know what happened. The titles of these, I put my titles on the slide as well, but I think probably editing or something, they're not there, but I'll tell you what they are. You can just imagine, it's like a pantheon. ये pantheon में हम खड़े हैं और ये pantheon के जो रुकन है वो ये है, the pillars. उसमें right from the top left पे अगर हम start करते हैं तो you have the sleeve gastrectomy. सेकेंड जो है वो अपर रो के अंदर जो है वो Roux-en-Y gastric bypass. थर्ड जो है वो one anastomosis gastric bypass, and we have one of the speakers who is well known for this. और उसके बाद फिर जो है वो biliary pancreatic diversion है जो कि Scopinaro है. फिर उसके नीचे जो है अगर हम फिर लेफ्ट साइड पे आ जाते हैं, we are moving from left up now. हमने लेफ्ट अपर खत्म कर दिया, हम लेफ्ट लोअर से शुरू कर रहे हैं. On the extreme पे जो है that is the procedure which is known as the SADI. As I can see, it's a SADI. Yes, it's a SADI. और उसके बाद जो start होते हैं procedures, वो आपको जो है they are basic the procedures which are the bipartition. ये bipartition के procedures हैं, except the last one which is a different one. लेकिन ये जो दरमियान में दो हैं ये bipartition. और इसमें जो first bipartition है वो तो है SASI है, which is single anastomosis, sleeve ileal bypass. और उसके बाद जो है वो जो Brazilian operation है sleeve gastrectomy with bipartition, which is transit bipartition. और जो आखिरी है ये ईस्ट एशिया का बड़ा पॉपुलर प्रोसीजर है, which is the sleeve gastrectomy with proximal jejunal bypass, जिसकी एक्सपर्टीज अल्लाह का शुक्र है अब काफी हद तक है और अंडरस्टैंडिंग भी है. तो these are the, इसमें और भी procedures हैं which can be added on this slide, लेकिन ये है कि ये 8 procedures चीदा हैं जो कि recognized procedures हैं. अच्छा, now why it matters, that why we should discuss and talk about this subject. First, type 2 diabetes mellitus is the commonest metabolic disorder.
It's understandable. It's the commonest metabolic disorder. Or second ये है कि the number of the obese people has already crossed 500 million mark, and that was way back in 2014. Now by 2000, we already, I think type 2 diabetes has crossed around 400 mark अभी cross कर रहा है, लेकिन it is absolutely sure that it is in 10 years time we will be crossing 500 million mark in 2035, which is not very far. So you can just look at the volume of the problem, the magnitude of the problem. अच्छा, अब इसमें जो third point है वो ये है कि 90% of the patients are type 2 diabetes, और 90, ये हम उसकी बात कर रहे हैं total जो इसका gamut है इसका diabetes का, उसमें 90% जो है वो type 2 हैं, type 1 जो हैं वो 10% हैं, 10% नहीं होंगे, हल्के थोड़े होंगे, क्योंकि उनमें इसमें भी एक दरमियान में ग्रे सा एक बैच आता है जिसे 1.5 कहते हैं, diabetes type 1.5, which is marching from type 1 to type 2 or type 2 to type 1. इसके अंदर जो इसमें आगे है कि 90% type 2 diabetes और obese और overweight, इसकी भी definitions हैं, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात जो सोचने वाली है वो ये है कि in the Asian countries, जो हमारा जो continent है, इसके अंदर जो है 50% of the type 2 diabetes patients are not overweight. This is very interesting. So we see that there is a role for this kind of surgery in all kind of diabetes, whether they are obese, whether they are overweight, or whether they are not overweight. So that's the potential. अच्छा, इसके अंदर जो आगे है वो visceral fat है, the belly fat. The belly fat, which gives the appearance of an apple type variety of obesity, जिसके अंदर round belly आ जाता है. So that kind of obesity, visceral fat जो है, that increases the risk of type 2 diabetes mellitus, but at least double. ये statistical figure है. And then obviously we now know that the men are at more risk of type 2 diabetes mellitus as compared to the women. Obviously, but this is opposite in bariatric. जब हम bariatric की बात करते हैं, the women are commoner and men are less. जो एक obesity भी एक बड़ा subject है, इसकी भी अपनी classification है, which is good obesity, which is bad obesity, and जो visceral fat obesity है, the truncal obesity है, it's a bad kind of obesity because that's a metabolically active obesity. अच्छा, इसमें ये है कि now how did the journey start? इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात है वो सोचने वाली बात ये है कि how did this idea came to its, how did it flourish? क्योंकि one of the philosophers whom I'm really impressed with was a fellow of All Souls College of the Oxford University. His name was Isaiah Berlin, and he was very much interested in ideas. That how do an idea gets planted, how does it flourishes, and how does it take its place in the world? Because everything is rooted in an idea. So this idea that the surgical management of type 2 diabetes was possible started off with an observation, and it was a simple observation. And this simple observation was a sequel or a sequela to an observation which was seen in the peptic ulcer surgery. क्योंकि हुआ ये कि the peptic ulcer surgery बहुत common थी, तो weight loss भी attendant था of all the patients who used to have partial gastrectomy. Any type of partial gastrectomy, patient would lose weight. We knew that. Patient would not be able to maintain his weight as it was. So that was a very strong observation, and that led to this kind of a historical march towards a bariatric surgery. उसके साथ साथ जो bariatric surgeons थे, उन्होंने ये देखना शुरू किया, उसके साथ तो diabetes type 2 भी सही सेट होनी शुरू हो गई. And that was, first they thought about hyperlipidemias. Basically, अगर आप history study करें तो hyperlipidemias पे काम हुआ, जहाँ metabolic surgery का नाम start हो. This was in the early 40s, somewhere in the early part of the 20th century, around the Second World War. कि उन्होंने सोचना ये शुरू किया कि there is basically the hyperlipidemias which get fixed and can be fixed by rearranging the bowel, the small bowel. इसमें stomach का role नहीं था उसके अंदर जो role था वो small bowel का role था. कि small bowel को अगर हम rearrange कर दें किसी तरीके से surgically आगे पीछे कर दें, तो उससे हम कोई ना कोई ऐसी malabsorption शुरू करेंगे कि lipid level will start falling. तो इसमें ये है कि this is how it goes. But the $1 million question is what is so easily manifest is so hard to accept and even harder to implement.
This is the gist. What is so easily manifest, एक चीज नजर आ रही है आपको, but it's so difficult to accept and equally hard once you accept how to implement it. Now I dug it out from the PubMed. मैंने बेसिकली जब ये पेपर्स जब ये बात शुरू हुई तो ऑब्वियसली आई टॉक टू प्रोफेसर मुलाजिम हुसैन बुखारी, जो मेरे टीचर भी हैं, मेरे कुलीग भी हैं. वो ऐसा होता है कि जो आपके स्टूडेंट होते हैं वो आपके पीयर्स बन जाते हैं टाइम पे. So I had an honor that I was once a student and then I became a peer with him. तो लेकिन स्टूडेंट ही रहता है all his life. तो अब मैंने सर से बात की तो सर ने मुझसे पूछा कि तुमने क्या टॉपिक तुम्हें ज़हन में है. तो मैंने फिर उनको फौरन बताया कि सर ये टॉपिक मुझे आजकल बहुत एक्साइट करता है. So he was very kind. Then we started talking, thinking about it. Then I did my research, or because this is a time of easy access to data and to papers. So मैंने देखना शुरू किया. Then I found out, very interesting, that the first paper which was published, and in fact I corrected this concept in my mind also. I had another gentleman in mind as a starter or the progenitor, the one who set the ball rolling. लेकिन मुझे पता चला ये ऐसी बात नहीं. The first paper which was published was by these gentlemen. And probably they are not very well known now. I think Professor Imran Abbas से भी इन लोगों के नाम यानी कि I'm sure अगर सुने तो obviously he must have known them. लेकिन मैंने थोड़ा सा जो मेरे बहुत ही humble सा knowledge है, मैंने देखा कि probably इनकी observation जो थी बड़ी valuable थी. वो इस लिहाज से कि ये खुद भी लिखते हैं इस पेपर के अंदर, अगर आप इसको गौर करें. I'll just give me an opportunity. I don't know why it's not working. Yeah, it's working. I will show you where it's very interesting. It's interesting over here. They say there is a very few data to support this. This is a problem, and obviously यही एक बात है कि एक observation तो थी ये. It was an observation, but there was a very few data to support this idea. And then they started reporting on cases of 23. Let me choose a pointer. I'm trying to choose a pointer right now. So it is 23 patients that they treated, and they were able to find that the 14 of them, they discontinued insulin. That's amazing. And 7 patients had a partial remission, and they came down to around from 23 to they came from 10 to 10, or amazing kind of amelioration or reduction in the usage of insulin. Because ये भी एक end point है इसका. If you cannot totally alleviate somebody's insulin requirement, तो कम से कम कुछ तो आप कम करेंगे ना उसका लोड. कि अगर उसको 100 यूनिट लगाने पड़े हैं डेली, तो चलो कम से कम उसको 30 लगाने पड़ेंगे, या 40 लगाने पड़ेंगे, या 20 लगाने पड़ेंगे. एटलीस्ट उससे कॉस्ट कितना डिफरेंस आ जाएगा, उससे उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी इंप्रूव कर जाएगी, उससे कितना हम चीजें पुश बैक कर देंगे जो कि विच आर लीपिंग टुवर्ड्स हिम in the form of many problems, not only financial, but the acceleration of organ failure. So this was very interesting, and this is how it took off. This is the first paper ever on this subject, which I'm sure. Now this is the gentleman. His name is Walter Puris, and Walter Puris was basically the man who gained the name out of it. Probably ये तो बिचारों का कोई नाम नहीं है, मैंने तो इनका तो नहीं, लेकिन इन जेंटलमैन का तो obviously you just turn the page anywhere and you find कि metabolic surgery में तो he is well regarded as one of the pioneers. In fact जो subsequent studies हुई हैं, meta analysis हुए हैं, reviews हुए हैं, लोगों ने काम किया है, they all carried him as a person who highlighted the subject, that there is a possibility to treat type 2 diabetes mellitus, which is just treated by by oral hypoglycemic agents and the other agents which are now available with surgery. And Walter Puris is alive and healthy, and he did an amazing job. Lekin I give him a credit for one thing, and the credit is that he was able to publish long data. Basically hota ye hai कि if you set an idea, that idea should be sustained. The effect should be sustained. It should not be a talk of a day. It should be a story of years. So the operation that he practiced was the Granville variant of the gastric bypass. You can just see that this is not a disconnection. This is just a stapler fired across. और उन्होंने just like जिस तरह जो लोग करते हैं vertical banded gastroplasty, they know very well.
these kind of staplers या जो लोग uncut ru and y करते हैं, they know कि they fire a stapler which fires across but doesn't cut like a TA. तो TA हम कहते होते हैं उस stapler को, तो instead of using a GIA. So he used to do, and ये जब पेपर लिखा गया है तो you can very well imagine this was not the era of laparoscopic surgery. ये वो लोग थे जो कि उस जमाने में काम कर रहे थे बेरियाट्रिक पे, मेटाबॉलिक पे, जब मेरे ख्याल से it was a very difficult time considering obesity, considering weight problems, wound problems, और चारों ने, because the bariatric surgery and metabolic surgery has taken off only with the arrival of the minimal access, because minimal access changed the way our appreciation of metabolic surgery was. वो change हो गई. छोटे-छोटे incision, patient gets off the table, doesn't feel pain, and ambulant, and you know, in my practice now, patients are walking the very next day. Started sips of water, अब तो वो चले, वो तो हमने चलो कोलोरेक्टल से ले लिया कॉन्सेप्ट, कैहलेट का कॉन्सेप्ट ले लिया उसका, ईरास का, लेकिन बात तो सारी ये है कि जोड़ा तो हमने दोनों को है आपस में, लेकिन हमने भी फायदा उठा लिया ईरास से, क्योंकि कैहलेट का वर्क था, that is basically a Scandinavian surgery, उसका ये वर्क था ईरास, लेकिन हमने फायदा उठाया, हम भी पेशेंट को पानी पिलाते हैं और चला देते हैं. तो दिस इज व्हाट वी डू नाउ. तो दिस इज नॉट पॉसिबल. तो लेकिन ये लोग वो हैं जो कि प्री लेप्रोस्कोपिक मिनिमल एक्सेस एरा के लोग हैं, लेकिन आप पेपर देखें उसमें क्या लिखा. नहीं, कुछ नहीं, मैं बिल्कुल बड़े आराम से बैठा हूं. आप उसका पेपर अगर आप देखें तो यू विल बी सरप्राइज कि उस शख्स ने, उस बंदे ने क्या काम किया. यू जस्ट फोकस ऑन दिस ग्राफ. This graph shows 6 years of work. 6 years of work. और आप ये देखें कि उसका सस्टेन वेट लॉस कितना उसने शो किया, कि गैस्ट्रिक बाईपास, जो वो गैस्ट्रिक बाईपास का जो वेरिएंट कर रहा था, उसे कैसा पेशेंट को सस्टेन्ड एक्सेस वेट लॉस हुआ एट द एंड ऑफ 6 years. अगर आप इस स्लाइड को देखें तो ये तो इस ग्राफ, इसको टेबल को देखें तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उस जमाने में इतना ज्यादा स्टैटिस्टिकल वर्क तो था कोई नहीं, पेपर लिखे जाते थे तो इतना इंटेंस नहीं है. अब तो आप देखें तो मेटा एनालिसिस में एक से एक नया टेस्ट बताया जा रहा होता है, कभी क्या क्या चीजें चेक की जा रही होती हैं, सिस्टमैटिक रिव्यूज में कितनी बातें हो रही होती हैं और क्या क्या डिस्कस होता है. एट दैट टाइम द पेपर्स वर नॉट दैट, you know, and the work was that also not that, you know, that complicated. So he just pushed out. But if it's very impressive, just look at it. He showed that before the operation, the number of the patients who had, you know, diabetes mellitus had non-insulin dependent. It was a term थी भी नहीं type 2. Type 2 तो बाद में आई. उस वक्त non-insulin dependent. तो उसमें देखिए कि उसमें 88 थे जो कि after the operation सिर्फ 2 रह गए. हम ये 87 की बात कर रहे हैं. He is proving this point. और अभी हम बैठे बात कर रहे थे तो प्रोफेसर इमरान अब्बास कहते हैं कि बहुत सारे सर्जन्स हैं जिनको इस बात की अंडरस्टैंडिंग है. तभी तो आइडिया की बात है ना, द पावर ऑफ एन आइडिया, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट, यू नो, एक्सेप्टेड. तो अच्छा, उसमें आगे वही लिखते हैं कि जो जिन लोगों ने रिसीव की इंसुलिन वो 20 थे, कर रहे थे बिफोर द ऑपरेशन, एंड आफ्टर द ऑपरेशन 2 रह गए, और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक में 13 थे और ये 1 रह गया. और ये हमारी डेली की कहानी है वेयर आई वर्क, कि हमारे पेशेंट्स का ऐसे होता है. दे जस्ट, हम जाते हैं द फर्स्ट डे इन द मॉर्निंग, वी गो फॉर द राउंड, वी आस्क द पेशेंट, वी आस्क द नर्स हु इज विद अस, हाउ इज इंसुलिन? नॉर्मल. इज ही ऑफ द इंसुलिन? यस. एंड दैट्स वी कैटेगराइज एज सक्सेस ऑफ आवर ऑपरेशन. जब हम ये बात सुनते हैं हम कहते हैं ऑपरेशन कामयाब हो, बिकॉज दैट वाज, इट्स नॉट दैट हम कल देखेंगे, हम परसों देखेंगे, हम उसको फौरन देखेंगे. पेशेंट की इंसुलिन स्टार्ट्स ड्रॉपिंग, रिक्वायरमेंट स्टार्ट्स ड्रॉपिंग, एंड ऑब्वियसली उसकी बहुत सारी रीजंस हैं. ये इतना बड़ा चमत्कार जो है, इसका एक सिंपल सा रीजन नहीं है, लेकिन लेट्स नॉट गो इनटू दैट, लेट्स ग्लोरीफाई द आइडिया ऑफ इट. अच्छा, अब ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग रिव्यू आर्टिकल था और ऑन द मैकेनिज्म्स, and it sums up the mechanisms entirely in one picture. If you see, in one, this infograph कह लें इसको, आप picture कह लें, diagram कह लें, it tells you all that what does bariatric does, what it do to everything. It affects the brain, how our preferences change. It affects on the basis working on the foregut hypothesis, on the hindgut hypothesis, as well as on the renin. रेलिन का तो ऑब्वियसली वो तो स्लीप के साथ जुड़ा हुआ है
कि आप स्लीप के साथ भी जुड़ा हुआ है, रूएन बाय गैस्ट्रिक बाईपास के साथ भी जुड़ा हुआ है, लेकिन रूएन गैस्ट्रिक बाईपास के साथ वो जो स्पीड के चीदा लोग हैं वो जानते ही हैं कि ये टेम्पररी इफेक्ट होता है। आप पॉपुलेशन तो कट नहीं करते रेलिन की, तो रेलिन तो वहीं रहता है। रेलिन वो हार्मोन है कि जो एट द टाइम ऑफ माय पोस्ट ग्रेजुएशन ये निकला है, और आप देख लें, इट हैज टेकन द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म एंड इट इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम द ग्रोथ हार्मोन रेलिन। और जो फिजियोलॉजिस्ट हमारे साथ कंपनी कर रहे हैं, दे मस्ट एग्री विद मी ऑन दिस कि इसका जो वर्ड था ये बेसिकली जो है इज कमिंग फ्रॉम ग्रोथ हार्मोन, और ये हमारा हंगर हार्मोन है। वंस यू नॉक इट ऑफ by slicing the stomach, you take off the hunger of the patient, जो इफेक्ट आपको गैस्ट्रिक बैंड में नहीं मिलता। बैंड के पेशेंट भूखे रहते थे, they used to feel lot of hunger, couldn't eat, प्यासा लेकिन पी नहीं सकते, खा नहीं सकते। लेकिन जो ये थे प्रोसीजर, स्लीप गैस्ट्रेक्टमी एंड रूएन बाय गैस्ट्रिक बाईपास, दे रिड्यूस द हंगर, पेशेंट को भूख ही नहीं लग रही। अच्छा, इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात वो ये है, फोरगट हाइपोथेसिस की है और हाइंडगट हाइपोथेसिस की है। ये हमारे फंडामेंटल हैं जिनके साथ हम खेलते हैं, वी प्ले विद इट। फोरगट हाइपोथेसिस सिंपल सी थ्योरी है कि एंटी इनक्रिटन्स होते हैं, दे आर द जो क्रिटन इनक्रिटन क्या इफेक्ट है वो ये है टू पोटेंशिएट द रिलीज ऑफ एंडोजेनस मैकेनिज्म है बॉडी का, इट स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ हेपरिन, ऑफ इंसुलिन। जो इंसुलिन की जो रिलीज है उसको पोटेंशिएशन जो है उसको आप इनक्रिटन कहते हैं। और वो जो इनक्रिटन हार्मोन्स हैं वो बेसिकली हाइंड गट के हैं, ऑफ इलियल हैं। They are distributed throughout because we know that the gut is the endocrine organ as well, और जो L cells हैं they are usually towards the tail of the small bowel, उसकी तरफ होते हैं। They are the ones which are responsible। और उसका जो एक हार्मोन है जो कि इतना प्यारा हार्मोन है कि ना उसके नाम पे इतनी सारी दवाइयां आ गई, रिसेप्टर एगोनिस्ट आ गए, एक पे एक। अब मेरी बेगम मुझे बता रही थी उस दिन के अब तो जो सऊदी अरेबिया है उसमें तो अब डुअल मैकेनिज्म वाले आ गए हैं जो GIP को भी इंक्लूड कर रहे हैं। फिर अभी हमने रिसेंटली एक वो ट्रायल पढ़ा, फेज 2 ट्रायल पढ़ा उसका, जो न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में आया कि अब 3 भी आ रहे हैं जिसके अंदर ग्लूकागॉन भी उन्होंने शामिल कर दिया है। तो लॉट्स ऑफ, यानी कि ये सारे मैकेनिज्म जो हैं। तो हम बात कर रहे थे कि व्हाट इज फोरगट। फोरगट मैकेनिज्म ये है कि आप जब डूडेनम को कट करते हैं तो आप फ्लो ऑफ फूड को डाइवर्ट करते हैं, उसकी स्ट्रीम को डाइवर्ट करते हैं, उस खाने को डाइवर्ट करते हैं फ्रॉम द स्टमक इनटू द डिस्टल बावल, wherever आप उसको गिराना चाहते हैं आप गिरा दें, आप कनेक्शन बना दें, सर्जन है, आप कहीं भी नॉस्टोमोस कर सकते हैं, यू जस्ट हैव टू फायर अ स्टेपलर। लेकिन आप उसको एक्सक्लूड करते हैं डूडेनम से। जो डूडेनल सरफेस है उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज है जिसको आज तक हम पकड़ तो नहीं सके, लेकिन आप उसको कहते हैं एंटी इंक्रीटिन। वो क्या है कि वो प्रिवेंट करते हैं कि जिससे जो है वो इंसुलिन का जो मैकेनिज्म है उसको वो अफेक्ट कर, ठीक है, और वो सिक्रीट नहीं होते एंटी इंक्रीटिन्स जो, ठीक है, और वो आपको रोक देते हैं, ठीक है। तो दिस इज द फिनोमेना जिसको आप इस्तेमाल करते हैं फोरगट के, ठीक है। और हाइंडगट में ये है कि विच इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल हाइपोथेसिस कि जब फूड लैंड करता है इनटू स्मॉल बाउल, एक किक मिलती है उसको इलियम में, जो फूड की प्रेजेंस की वजह से, जो फूड आपका लैंड करता है, और उससे क्या होता है कि जो एल सेल सिक्रीट करते हैं इस हार्मोन को विच इज ग्लूकेगॉन लाइक पेप्टाइड, प्रो ग्लूकेगॉन का डेरिएटिव है, और उसमें से निकल के ये जो हार्मोन है शॉर्ट लिव्ड हार्मोन है, सीधा जाता है पैनक्रियाज में, और वहां अपना असर दिखाता है। और असर क्या दिखाता है कि एंडोजेनस इंसुलिन को, उसके पंपिंग को बढ़ा देता है, जो बीटा सेल है उनकी फंक्शनिंग को एफिशिएंट कर देता है, और पेशेंट बेहतर होता है। तो ये जो आपका हाइंडगट हाइपोथेसिस है वो आपका एक्ट करता है इन मेटाबॉलिक सेल। हम इसी से प्ले कर रहे होते हैं ऑल द टाइम टू मच ऑफ द एक्सटेंट। हम फोरगट हाइपोथेसिस को ज्यादा नहीं टच करते, लेकिन ये है कि हम ये समझते हैं कि जो जो हमारी भी अंडरस्टैंडिंग है कि जो हाइंडगट हाइपोथेसिस है इज फार मोर स्ट्रॉन्गर, क्योंकि इससे ये होता है कि ये सेटिएटी को प्रमोट करता है। इट वर्क्स एट वेरियस लेवल्स। ये ना सिर्फ इंसुलिन की सिक्रीशन को सही करता है, लेकिन बेरियाट्रिक एंड के ऊपर ये सेटिएटी को भी इंप्रूव कर रहा होता है। इट वर्क्स ऑन द ब्रेन ऑल्सो। और ये सेटिएटी हार्मोन है बेसिकली, जो GLP-1 है। और इसके आप कितने सारे एगनिस्ट आ गए हैं, इसके एगनिस्ट भी आ गए हैं विच आर कंपैटिटर्स फॉर बेरियाट्रिक सर्जरी, जिसके अंदर लीराग्लूटाइड, ड्यूलाग्लूटाइड है। और मेरे ख्याल से हमारे जब सामीन है प्रैक्टिसिंग मेडिसिन, दे नो अबाउट देम कि हमें ड्यूलाग्लूटाइड, लीराग्लूटाइड एंड सीमाग्लूटाइड, और फिर डुअल मैकेनिज्म, ट्रिपल मैकेनिज्म, ऑल आर देयर। तो ये सारी बात है कि ये किस तरीके से हम जो है मेटाबॉलिक सर्जरी काम कर रही है। ये काम कर रही है बाय हाइंडगट हाइपोथेसिस।
अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि हाँ, इस स्लाइड में हम ये देख सकते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ हेल्दी पैनक्रियाज एंड एन अनहेल्दी पैनक्रियाज। और अनहेल्दी पैनक्रियाज और अनहेल्दी जो टिश्यूज का जो फंक्शन है उसको सारा नजर आप देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि जो एक प्रॉपर बीटा सेल है व्हिच इज राइट इन द सेंटर। आई विल टेक माय मार्कर हियर, दिस इज अ बीटा, दिस इज बेसिकली द आइलेट ऑफ लैंगरहॉर्न। तो लैंगरहॉर्न के अंदर आप देख सकते हैं कि यू हैव यू नो मिनिमल प्रो इंसुलिन बहुत थोड़ी है, इंसुलिन बहुत सारी रेड डॉट्स हैं, लेकिन इसमें अगर आप इस तरफ देखें तो इंसुलिन के डॉट्स कम होते जा रहे हैं, प्रो इंसुलिन के बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, दे आर टू, दे आर मोर। और आप ये देखें कि इसके अंदर जो है ग्लूकोज बेचारा जो है सर्कुलेटिंग आउटसाइड, इट कैन नॉट गो इन, क्योंकि जो GLUT4 रिसेप्टर है, जो GLUT4 रिसेप्टर है, दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो GLUT4 रिसेप्टर है व्हिच इज फॉर द अपटेक ऑफ ग्लूकोज, it malfunctions, and probably it doesn't work and doesn't let the glucose in. लेकिन जो सबसे बड़ी बात समझने की वो ये है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से जो हाइपर इंसुलिनीमिया होता है उससे भी एक और वर्स इफेक्ट ये होता है कि वो डाउन रेगुलेट कर देता है इंसुलिन रिसेप्टर्स ऑन द सरफेस ऑफ द नॉर्मल सेल्स व्हिच आर द फैट एंड द मसल। बेसिकली इसमें जो हमारे जो ऑन द अदर साइड जो है इस सारी इक्वेशन में, एक तरफ पेनक्रियास एंड गट है, दूसरी तरफ हमारे पास मसल एंड फैट है। They are the principal, the principal, as I should say, they're the users of that currency. जो उसको उस करेंसी को जिन्होंने यूटिलाइज करना है वो ये ऑर्गन्स, ये हमारे टिश्यूज हैं, फैट एंड मसल। तो दे मैल फंक्शन, और ऑब्वियसली इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, उससे हाइपरइंसुलिनीमिया हो जाता है। और हाइपरइंसुलिनीमिया टू दैट एक्सटेंट होता है कि हमेशा हमारी प्रैक्टिस में ऐसे ही होता है कि जब हम अपने पेशेंट को मेटाबॉलिक सर्जरी के लिए लेके जा रहे होते हैं, हम उसकी हमेशा उसकी इंसुलिन करवाते हैं, हम उसका सी पेप्टाइड करवाते हैं। सी पेप्टाइड इज अ बेटर मार्कर, क्योंकि उसकी वजह ये है कि सी पेप्टाइड डज नॉट गो टू द फर्स्ट पास इफेक्ट ऑफ द लिवर, और उसके लेवल्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट रहते हैं टू द मेटाबॉलिज्म। तो वंस इट क्रॉसेस एंड गोज इनटू सर्कुलेशन, सी पेप्टाइड से पता चल सकता है कि क्या सूरत हाल है, पैनक्रियास कैसा काम करता है। फिर हम उसका होमा भी करवाते हैं, होमा इज एन इन्वेस्टिगेशन जिससे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं। तो ये जितने भी वैल्यूज हैं ये बहुत स्काई हाई गई होती है इन मरीजों की, नॉट एवरीबॉडी, क्योंकि हर डिजीज का एक हेट्रोजेनिटी होती है उसके अंदर, और उस हेट्रोजेनिटी के अंदर डिफरेंट सबसेट्स होते हैं पॉपुलेशन के। लेकिन जब हम बल्क की बात करें, हमारे पेशेंट्स की, जो हमारे टाइप डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जिनकी हम मेटाबॉलिक सर्जरी करते हैं, उनकी इतनी बड़ी होती है इंसुलिन की जिसकी धार, और उसी तरह उनका होमा और बड़ा होता है, फिर हम उसको देखते हैं डीएस्केलेट होता है। अच्छा, अब इस स्लाइड में ऑब्वियसली वी कैन सी दैट द इफेक्ट्स इट हैज, we can see it affects everything, but mostly the adipose tissue, and obviously it knocks out the kidney, affects the muscles, the immune system. So we can understand the type 2 diabetes, it has a protein manifestations, it affects, strikes every organ which have insulin receptor and needs insulin for the uptake of glucose. So they get really battered and they get damaged. अच्छा, अब ये जो जिसकी वजह से डॉक्टर वॉल्टर पोरीज का बहुत नाम है वो ये पेपर है, क्योंकि दिस वाज अ पेपर व्हिच ही वाज बेसिकली, जो अच्छे रिसर्चर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो उसी कोहोर्ट पे काम कर रहे होते हैं। बेसिकली जस्ट लाइक एक स्वान स्टॉर्म है, इफ आई एम टेकिंग हिज नेम राइट, एंड प्रोफेसर इमरान कैन करेक्ट मी, द स्वीडिश गाय हु हैज वर्कड ऑन मेटाबॉलिक सर्जरी, he has worked on the Swedish obese subjects. ये बेसिक रजिस्ट्री है स्वीडन में। स्वीडन एक छोटी सी है तो बहुत ह्यूज इकोनॉमी, लेकिन इतने ज्यादा लोग नहीं है, एंड दे आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड। तो स्कैंडिनेविया के जो है ना, दे हैव वेरी एफिशिएंट रजिस्ट्रीज, बड़ी उनकी यूनिवर्सल हेल्थ केयर है, दे मैप आउट एवरी पेशेंट, यानी दे कैन मैप आउट एवरी पेशेंट फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। तो उन्होंने जो अपने 20 पेशेंट्स हैं उनके लिए एक रजिस्ट्री खोली हुई है, उसका नाम है स्वीडिश ओबीज सब्जेक्ट्स। उसके सब्जेक्ट स्टडी है, वो एक प्रोस्पेक्टिव स्टडी जो चल रही है, ऑन गोइंग है, उसमें डाटा निकल रहा है ओबीज पेशेंट्स का। एंड ऑब्वियसली वी नो इट्स अ स्कोर्च, obesity is a scourge of the rich and the powerful, and खाते हैं मोटे हो जाते हैं, दूसरे और लोग भी हैं, लेकिन ज्यादातर तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन का ही था, हैमबर्गर और मैकडोनल्ड इफेक्ट है ये सारा, मैकडोनल्ड इफेक्ट। तो इसके अंदर अच्छा, अब इसमें इस पेपर में ये था कि सबसे बड़ी बात जो देखने वाली है वो ये है कि इस पेपर में जो थे वॉल्टर पुरीज, he is bringing data of 14 years. Now this is a 14-year study which will prove forever that how does the type 2 diabetes gets ameliorated
with the help of bariatric surgery. उनके पेशेंट का सस्टेन वेट लॉस था for 14 years. अगर आप देखें रिगेन हो रहा है, पेशेंट का वेट रिगेन हो रहा है. That's true. Came down, sharp came down, but came. We know there are so many mechanisms हैं. एक साइंस है पूरी, चलता है, होता है. लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने क्या शो किया. उन्होंने ये शो किया कि how do his patients were doing as far as this what you call the glucose was. It came up, it came down, never to rise again. And just look how the gradual correction of insulin happened. In hyperinsulinemia जो था, कहाँ ये 40 value is huge. Normal insulin is lingering around 4 to 5. हमने तो 100 तक भी देखा है, 80 तक भी देखा है. इतने पेशेंट पंप कर रहे होते हैं. They are pumping out insulin because of insulin resistance. उनके pancreas is hitting hard to get the and at one time it gives off. वो fatigue हो जाता है, फिर वो failure में चला जाता होगा. It's not an autoimmune mediated failure, but an exhaustion failure. कि beta cells function so much that they go into a matter of fatigue and they stop working. लेकिन इसमें आप ये देखें, गो के ये तो ठीक हो गया, लेकिन gradually जो था hyperinsulinemia भी उनका बेहतर. On this graph, this proves the point that hyperinsulinemia, which is a problem, gets better and better and certainly improves. अच्छा, अब ये एक और मेटा एनालिसिस था, इसमें भी वाटर पोरीज शामिल थे और इसके अंदर भी उन्होंने अपना ये शो किया. एंड दिस इज अ मच बिगर स्टडी. इफ यू सी, इट्स अ मच बिगर स्टडी जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स हैं. ये तो बहुत छोटा सा कोहोर्ट था उनका जिसको वो लेके आगे चल रहे थे. बट नाउ हेनरी बुकफोल्ड, इनकी बहुत बड़ी किताब है. If you focus here, this gentleman who is Henry Buchfold, I will just highlight to show this gentleman. He is a big author. He's a man who has been the man of the hour, I should say, for the bariatric surgery. और इन्होंने इनकी text है on bariatric surgery, which is read by nearly, I think, many surgeons, and I'm one of them who has benefited from that as well. So Buchfold and then obviously Walter Porys once again. और इन्होंने सबने अपना डाटा pull up किया, and that led to this study. And this study has around 40, I think 20,000 patients. Can you imagine? Now, obviously, we all know the significance of a study rises and becomes more. The p-value gets better. The confidence intervals gets better. We know that the data will, but what we are going to churn out the data will be the near approximate of the population. The sample will reflect the population. और उसके अंदर फिर हम ये देख रहे हैं कि इन्होंने amazing show किया कि the patients who had a resolved diabetes out of a cohort of around 1,400 had a total improvement in their diabetes. That is amazing. अगर आप ये सोचें कि 1400 लोग, they became off the medications and they tended to have a normal life. That's amazing. Because we all know that as long as the type 2 diabetes is on the road, is hitting the organs hard. It is hitting the pancreas hard as well. Because hyperinsulinemia and the effect of churning out insulin all the time leads to fatigue of the beta cells, and they will die if they will keep on churning out the beta cell, the insulin. So amazing result. And जो result है उसके अंदर अगर आप ये देखें तो उसमें कुछ लोगों की इंप्रूवमेंट भी हुई, नॉट टोटली. वो जो थे वो 414 थे और जो बेचारे नाकाम रहे वो सिर्फ 12 थे. वो रीजंस होंगे, कोई ये आपको स्टडी करना पड़ेगा. कोई अच्छा अगर रिसर्चर हो, he can open up the paper and he can go deeper. और डाटा के पास पेपर तो पढ़ने से इतना फायदा नहीं, डाटा अगर आपके हाथ लग जाए तो you can understand why it happened, because we have more access now to understanding of the failure, because we have lots of things that we can analyze the failure of surgery, of metabolic surgery. लेकिन इसमें अगर आप देखें तो इतना बड़ा रिजल्ट देना, that is amazing. अगर आप देखें उनकी heterogeneity देखें, it is amazing. There is no heterogeneity. 0.1 का मतलब यह है कि statistically significant है. There is no heterogeneity. They were amazing. And we move on. So now अब ये gentleman है जिनको मैं मिला हूँ, जद्दा में मिला था अभी recently. There was a Saudi metabolic surgery की meeting थी. I was lucky to be there. I had to be there.
मेरे वहाँ भी एक बड़े सीनियर हैं, बड़े अच्छे सीनियर हैं, मेरे बॉस ने भी जाना था जिसके साथ मैं आजकल काम कर रहा हूँ, तो वी वर ऑल देयर। तो फिलिप शार, he is an amazing man and he is responsible for the stampede study. ये study, this study is the other side of the metabolic. इनके भी जो वर्क है वो अमेजिंग है, लेकिन इनके वर्क की जो अमेजिंगनेस है वो उसके अंदर अगर आप देखें तो ये अब वो दिनों की बात हो रही थी ना वॉल्टर पोरीज की तरफ, तो अब आपको नजर आएगा कि ये सालों में कैसा होता है। कैन यू इमेजिन कि फिलिप शॉर का मैंने सुना था, मुझे प्रोफेसर हुआंग ने कहा कि ये बंदा ऐसा बंदा है कि ये डाटा के यू कैन नॉट डिफीट हिम इन डाटा, यानी कि इस बंदे ने इतना काम किया है अब सब्जेक्ट पे मेटाबॉलिक सर्जरी पे कि यानी कि बियॉन्ड इमेजिनेशन, जस्ट कीप ऑन थिंकिंग। ये सोचने वाली थोड़ी सी बात है, तो सोचें जरा कि एक बंदा ही इज फॉलोइंग अप अ पेशेंट ईयर आफ्टर ईयर एंड ही डजंट लेट देम ड्रॉप आउट। यानी कि ट्रायल्स का फेलियर का रीजन क्या होता है? ड्रॉप आउट रेट होता है, फिटीग हो जाती है। जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो फिटीग हो जाते हैं, थक जाते हैं बेचारे, कहते थक गए, ऐसी नहीं आगे चलता। He cannot come back and back to your clinic again and again for all of this that you are doing, but he persevered. इन्होंने अपना जो है वो 6 साल का फिलिप शॉर, आई मेट हिम, और इन्होंने अपना जो है अपना शो किया। और इसमें दूसरा आदमी जो मस्ट मेंशन है वो ये बंदा, his name is Ali Aminian, worth meeting, लेबनानीज है। लेबनानीज वैसे ही हमें पता है बड़े कमाल लोग होते हैं। ये छोटी सी कंट्री है लेकिन वेल्थ ऑफ इंटेलेक्ट। मेरे ख्याल से अगर आप पर स्क्वायर मीटर इंटेलेक्ट निकालें तो मेरे ख्याल से कमाल ही हो गई। तो अली मीनियन इज वन ऑफ देम। तो इज वर्किंग इन अमेरिका एंड एज इन्वेस्टिगेटर्स दे पब्लिश्ड आउट दिस डाटा। और ये देखने से ताल्लुक रखता है। अगर आप देखें कि इन्होंने ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, ये ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन कह रहे हैं, इसे ग्लाइकोसिलेटेड कह लेते हैं, हीमोग्लोबिन A1C देख लें कि स्लीप गैस्ट्रेक्टमी के साथ कहां पहुंचा है और बाईपास के साथ कहां पहुंचा है। और मेडिकल थेरेपी देखें, पैसे ही पैसे। कि आपने एक कॉस्ट तो दी थी यहां सर्जरी की, वो मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन जस्ट लुक एट इट, एवरी ईयर यू आर पेइंग अ प्राइस टू मेंटेन योरसेल्फ एट अ सर्टेन लेवल व्हिच यू कैन नॉट बिकॉज ऑफ सो मेनी फैक्टर्स, बट सर्जरी immediately cancels out the effect of all that which is going on in the body, and that's all because of the rearrangement of the bowel. Metabolic surgery करती क्या है? If we go back to our first slide, rearrangement of the bowel, वो यही करती है कि रीअरेंजमेंट करती है, आपका स्टमक का हिस्सा निकाल देती है, तो आप स्लीप गैस्ट्रेक्टमी कहते हैं उसको। बाकी तो सारी जंबलिंग आप है, डूडनम काट दिया, पैलोइड ट्रांजैक्शन कर दी, तो फोरकट कर दिया, उसको नीचे उतार दिया, इलियम के अंदर स्टमक का और स्मॉल बाउल का कनेक्शन बना दिया, तो उसको आपने वन एनास्टोमोसिस बाईपास कह दिया। लेकिन व्हाट आर यू डूइंग इज हाइंडगट हाइपोथेसिस। आप यहां देखें कि उसने क्या शो किया कि किस तरीके से जो लोग, जो सर्जरी वाले लोग थे, उनके क्या हालात। आप ये मेडिकल थेरेपी वालों के देखें वो क्या कर रहे हैं और ये क्या हो रहा है। यस, हेलो, यस सर। तो दिस इज हाउ इट इज। आई होप ठीक है डॉक्टर लुकमान, कंटिन्यू बस। अच्छा, तो सर ये है सूरत हाल। तो इसमें अगर आप ये गौर करें तो इसमें जो है ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन है। अगर आप इस ग्राफ को चेक करें, ये कितने सालों का है, ये आप मंथ्स लगाएं, 60 मंथ्स बनते हैं, तो ये तकरीबन 5 to 6 ईयर्स का डाटा है जो उन्होंने इकट्ठा किया। आगे एक और आ रहा है इसके अंदर जो उन्होंने अभी रिसेंटली पेपर पब्लिश किया, वो और भी लंबा है, ठीक है जी। सो these people, these investigators like Walter Porys, like British like Philip Shar and Ali Minian, they have proven that it is long lasting। यानी कि आपने एक केस बनाना है ना, आपने एक कॉस्ट इफेक्टिवनेस का, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का, क्वालिटी ऑफ लाइफ एश्योरेंस का आपने एक केस बनाना है। You have to put forward a cogent argument before the people that this is working, whether this is your own community or people at large, तो आपने दिखाना। तो आपने अब ये देखें कि स्लीप गैस्ट्रेक्टमी में आप देखें, आप स्लीप गैस्ट्रेक्टमी में चलो थोड़ा बेहद मोनोथेरेपी, फिर भी पार्शियल रिमिशन, हमें पता है स्लीप गैस्ट्रेक्टमी एक ही मैकेनिज्म काम कर रहा है, रेनिन का निकाल दिया आपने। स्लीप गैस्ट्रेक्टमी सिंपल स्लीप है ना जी, आपने सिर्फ स्टमक निकाला है। लेकिन रूएन बाय गैस्ट्रिक बाईपास तो वो तो एक हैमर है ना, इस लिहाज से कि आपने जो है वो स्टमक को भी आपने उसको जो है वो छोटा कर दिया, और आपने जो है स्मॉल बाउल के अंदर गिरा, उसका कनेक्शन बना दिया उसका, ताकि जो है वो सारा उसमें गिरे, ताकि उसके साथ साथ हाइंगट शुरू हो जाए।
और उसमें आपने जो है डूडनम को एक्सक्लूड कर दिया, ट्रिपल मैकेनिज्म स्टार्ट कर दिए, तो वो तो रिजल्ट आना ही आना था कि पेशेंट को जो है जरूरत ही नहीं है फॉर एनी थेरेपी, दे आर फ्री हैविंग अ नॉर्मल लाइफ स्पैन। जरा सोचें नॉर्मल लाइफ स्पैन, जरा सोचें कितने लोग जो पाकिस्तान में फौत होते हैं, सो मेनी लोग, दिस इज द वेस्ट आल्सो, इसकी कोई एक्सेप्टेंस वेस्ट में भी तो इतनी पॉपुलर नहीं है to make a argument for an economic argument in the field of metabolic surgery is difficult. कन्विंस करना कि इतना पैसे पहले खर्च कर दो फिर बाद में इतना फायदा होगा, ये तो बात तो किसी ने नहीं देखी, बट स्टिल इट इज बेनिफिशियल। वही रिजल्ट आप देख रहे हैं कि इट कॉरेस्पॉन्ड्स कि जहां वो उसमें दिखा रहे हैं, इसके अंदर बॉडी मास इंडेक्स के साथ साथ दिखा रहे हैं, वही आप देखें, दिस इज सर्जिकल थेरेपी इज अमेजिंग। सर्जिकल थेरेपी के साथ जो 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 रिजल्ट्स हैं वो अमेजिंग है, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। और उन्होंने दोनों में दिखाया, लेस देन 35 एंड मोर देन 35, आप उससे भी कम में देख लें, दोनों में देख लें, इट्स एन इक्वल रिजल्ट मोर और लेस। अच्छा, अब ये रिसेंटली आया 24 के अंदर, ये अभी अभी आया, दिस इज द लेटेस्ट रिजल्ट है, ये लेटेस्ट है। वही टीम है अली अमीनियन की और उनकी, लेकिन ये आर्म्स है, ये आर्म्स T2D है स्टडी, आर्म्स T2D। तो जो आर्म्स T2D स्टडी है, वो 4 स्टडीज उन्होंने मिलके जो है उसके अंदर उसको उन्होंने इकट्ठा किया है, और इकट्ठा करने के बाद उसको पूल्ड एनालिसिस किया उसका, और पूल्ड एनालिसिस भी कमाल हुआ है। दैट शोज, ये चार स्टडीज थी, इफ यू सी दैट 4 स्टडीज, उन्होंने 4 स्टडीज को 4 लोगों को 4 स्टडीज को पुल अप किया है, और उसका रिजल्ट देखें ऑफ 12 years। Can you imagine? Can you imagine? Look at the remission rate. Amazing. Amazing. This is amazing. So, तो ये आपको पता चलता है कि how it is, it can save the people and make a huge difference. Latest guidelines also support now, and they quote these papers. और जो लेटेस्ट गाइडलाइन ये 2022 में आई है, ये पहले 1991 में आई थी, फिर 2022 में आ चुकी भी है, और ये भी उसको सपोर्ट करती है ऑन द यूज ऑफ बेरियाट्रिक सर्जरी फॉर मेटाबॉलिक रीजंस। मेटाबॉलिक रीजंस के लिए ये सपोर्ट करते हैं, ये कहते हैं कि अगर ये जहां आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये कहते हैं कि इट हैज शोन द रिजल्ट्स एंड द रिकमेंडेशन है, ऑब्वियसली वी कैन डिबेट ऑन द लेवल ऑफ रिकमेंडेशन, लेकिन ये है कि रिकमेंडेशन आ गई। उसी तरह इफ्सो की कंसेंसस हुई थी रिसेंटली, इफ्सो भी प्रोफेसर इमरान वास्तव काफी एक्टिव इन ऑर्गेनाइजेशंस में, तो इनकी भी रिसेंटली कंसेंसस हुई थी, 2023 का कंसेंसस है, 24 में छपा है, और वो भी ये शो करता है कि ज्यादातर कंसेंसस अब अचीव हो ही गया, बस इस पे हो गया, ठीक है ना जी, इस पे हो ही गया हुआ है कि यानी कि इट कैन वर्क, यानी कि उसमें BMI पे बहस जरूर हो सकती है कि यानी लेस देन 30, मोर देन 30, लेस देन 35, मोर देन 35, लेकिन ये जरूर है कि everybody know कि those who cannot achieve a good remission on medical management, they should start thinking about the use of surgery, provided that they have enough beta cell mass, good C-peptide levels, and high insulin levels to have a objective response। क्योंकि जिसका C-peptide ही नहीं है, या जो बिल्कुल लास्ट लेग्स पे लगा हुआ है, ट्रिपल थेरेपी ले रहा है, और I think he may not be a good candidate for metabolic surgery, क्योंकि वो कहेंगे तो उसको आप टाइप 1 में रखेंगे, लेकिन बेसिकली वो टाइप 2 की तरफ चल पड़ा हुआ, 1.5 है बेसिक, वो 1.5 की तरफ जा रहा है। तो इस तरह के पेशेंट के अंदर, अच्छा, अब ये भी एक था जो मैंने आई वांटेड टू शेयर, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी है, चाइनीज बहुत आगे हैं इस काम के अंदर, चाइनीज ने ये शो किया है, यानी कि दे डिड आल्सो एन अमेजिंग स्टडी, जिसके अंदर लेस देन 30 है, क्योंकि उनका अंदर इतने वजन होते नहीं है, तो वो ज्यादातर जो उनके तो गाइडलाइन भी डिफरेंट हैं, फॉर लेसर वेट के लिए भी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनकी तो ओबेसिटी भी बहुत लो लेवल पे स्टार्ट हो जाती है एज कम्पेयर टू दी अवर पॉपुलेशन, द वेस्टर्न पॉपुलेशन। कोकेशियन से जो मंगोलॉइड है थोड़े से डिफरेंट है, लेकिन ये है कि या जो पॉलिनेशियंस है डिफरेंट है, लेकिन ये है कि वो भी उन्होंने काफी काम किया है, एंड दे आर नॉट बिहाइंड एंड दे आर आल्सो लीडिंग इन देयर ओन वे, एंड दे आर थिंकिंग वेरी सीरियसली ऑन दिस इशू मेटाबॉलिक सर्जरी। और इनका ये इन्होंने एक स्टडी जो चाइना से आई है, दे हैव शोन दैट इफ यू सी ऑल ऑफ दीज, मैं अब इससे ज्यादा नहीं मैं करूंगा, ये एक बेसिकली मेटा एनालिसिस है,
आई थिंक इट्स मेटा एनालिसिस, क्योंकि सारे के सारे फॉरेस्ट प्लॉट्स हैं। लेकिन इसमें जब आप डायमंड इफेक्ट देखें और स्टडीज देखें, दे ऑल आर टू वन साइड, एक्सेप्ट कि ये लाइन ऑफ इफेक्ट क्रॉस कर गई है, या एक स्टडी छोटी सी है ये क्रॉस कर गई है। अब ये सब जितने भी हैं, दे ऑल आर शोइंग अमेजिंग वन साइडेड benefit of metabolic cell, provided the patient is selected well. मैं बार ये बात करूंगा, गुड सी पेप्टाइड लेवल्स होने चाहिए, हाई इंसुलिन लेवल्स होने चाहिए, पेशेंट को इतना ज्यादा थका हुआ नहीं होना चाहिए कि वो बेचारा जो है he has already been battered, and properly thoroughly investigated हो, so he can really benefit from metabolic surgery. And obviously now I think we are coming to the end of it. This just tells you the various mechanisms, how they are done, and what are the different agents. On all of these are basically the fat players, leptin, adiponectin, resistant retinol binding protein. लेकिन मेरे ख्याल से we will be going beyond. अच्छा, अब इसके अंदर जो है ये भी एक another meta analysis है. This is a huge meta analysis है. इसके अंदर ये बंदा तो he is one of the persons I really think has done the surgery. He's not a surgeon. I have met him. ये जिनकी मैं बात करूंगा मैं, वो मैं जिनको मिला हूं मैं, ठीक है जी। ये हैं कैरोल ली रू। ये बेसिकली सर्जन नहीं, इनके बारे में मैं इसलिए हमद करना चाहूंगा या तारीफ करना चाहूंगा कि ये ही इज नॉट अ सर्जन, लेकिन ही इज वन ऑफ दोज फिजिशियंस हु कैन सी थ्रू द लाइट, एंड ही हैज सपोर्टेड। वो अगर आपने ऑक्सफोर्ड हैंडबुक पढ़ी हो ना, तो उसके अंदर वो आता है, एक लाइन आती थी, पता नहीं अब रिसेंट में है कि उस बात थी कि नेवर सरेंडर अ पेशेंट टू अ सर्जन। फिजिशियंस को ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ इंटरनल मेडिसिन में लिखा होता है कि नेवर सरेंडर अ पेशेंट टू अ फिजिशियन, टू अ सर्जन। तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये भी है कि आप इतनी अच्छी मेहनत करो कि सर्जन के पास जाना ना पड़े, उसको पॉजिटिव लेना चाहिए। लेकिन ये है कि दिस गाय कैन सी थ्रू दी, कट थ्रू दी to all of that noise around him, and he sees that and he has worked very well. इसका एक बड़ा अच्छा लेक्चर भी है जो कि आपको ऑनलाइन मिल जाएगा on the issue of bariatric surgery, and this man is amazing. He is one of the one who has taken out this randomized this meta analysis, और इस meta analysis ने एक study नहीं multiple studies quote की हैं, which all prove, and this is basically one can see, one can read, go through it. It all proves once and for all that in various areas, various centers in the world, metabolic surgery has proven its value in patients of type 2 diabetes mellitus. And patients who fit the bill, get the management, they do absolutely well. And this is another paper which tells that when you lose weight, how the visceral fat responds, and obviously we know it gets down. Obviously जब visceral fat खत्म होगी, तो we know visceral fat खत्म होगी, तो उससे जो inflammatory component है fat का वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि visceral fat is very metabolically active. और ये वो visceral fat है जो कि डॉक्टर इमरान अब्बास हमेशा डील कर रहे होते हैं, जो हम डील कर रहे होते हैं कि वो मोमेंटम बड़ा भारी हुआ है, तो पीछे से वो जो पूरा उठा हुआ है, नजर कुछ नहीं आ रहा है, लिवर दरमियान में जुड़ के आके बैठ गया उसके साथ, और कभी ये रिट्रैक्टर लगाओ तो कभी वो नेथसन लगाओ, तो उसके साथ नीचे पुश करो और अपने रेजिस्टेंस को कह रहे होते हैं पुल करो। तो that kind of thing, that visceral fat जिसको सर्जन, जो बिस्ली सर्जन या बेरियाट्रिक सर्जन डेली मिलता है, वो फैट खत्म हो जाती है, जो कि अपर जीआई सर्जरी में नजर नहीं आ रही होती, क्योंकि जब मैं वो करता हूँ पैरासिफिकल हर्नियास करता हूँ, तो वो पेशेंट का वैसे ही खाली हुआ होता है बेचारा, ओल्ड एज होती है, डिबिलिटेड होता है, फ्रेलिटी होती है, सार्कोपेनिक ओबेसिटी, यानी कि वैसे ही सार्कोपेनिया होता है पेशेंट्स को, तो उनका तो सारा कुछ ही वो जो है ओपन, इट्स लाइक एन ओपन बुक, तो उनमें ये नहीं होता। इसमें ये है, इसमें ये लास्ट था, this slide is about what to do if it fails, if type 2 diabetes management fail होगी तो फिर क्या करना है। then we go back to square one. My all apologies, you have to, वो जो थोड़े से लोग हैं जो बेचारे नहीं कर पाते, वो क्यों नहीं कर पाते, शायद inadequate वर्कअप होता होगा, या वो वैसे लास्ट लेग पे होते होंगे बीटा सेल के एक्टिविटी के, वो जो fails, and then they have to go back to square one and to start using the agents stepwise. इसमें सिर्फ एक एजेंट है जो TZDs हैं, जो ग्लिटाजोन्स हैं, उनको थोड़ा सा आपने एहतियात से इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो प्रमोट करते हैं ओबेसिटी। दैट्स इट। इसके अंदर, इस स्लाइड के अंदर इतना ही है और कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच। आई एम सो ऑनर्ड and grateful for the opportunity to speak on the subject. I hope I was able to send my message across. लेकिन सर मैं आखिर में दोबारा अपनी ये एक मुझे स्लाइड पसंद है, मैं इसको दोबारा लगाऊंगा, क्योंकि ये वो है, ये पैंथियन है सर, पैंथियन है,
of the bariatric procedures, जो कि हर bariatric surgeon को उसके ये तो प्रैक्टिस तो नहीं हर बंदा करता, क्योंकि ये तो इमरान अब्बास सब जानते ही कि हर bariatric surgeon का अपना एक favorite procedure होता है, तो वो उसको बड़ा Professor promote करता है और उसको Luqman, believe and करता है. before I Thank you, request sir. Thank you, Dr. sir. Imran Abbas, I will request Professor Mahmood Ayas, who is the Vice Chancellor, and he is, sir, very kind of you. You are in Sakkar in very short time. You joined us. और सर मुझे पता है आज एक चहलम है, आप उसमें हैं, तो आई थिंक सर यू गिव योर कमेंट्स and then I will request Imran Abbas. Thank you so much, sir. Okay. Sir, thank you very much. I was very keenly listening to the presentation by Dr. Luqman Osman. I think indeed it was a very, very comprehensive presentation. And right starting from the picture which is still on the screen, he explained everything very nicely, that how does bariatric surgery work, what is the role of granulin, what is the role of granulin, what is the hindgut therapy, what is the foregut therapy. So whatever I needed to comment, he's already explained it very beautifully. And I think that this will be a very valuable source of information for every participant who is there. So I really commend Luqman Osman. I know him very well for quite some time. He's a brilliant surgeon, and I think that he has done a lot of justification of the topic which has been given. And you know, the surgeon who's going to follow him, Imran Abbas, is an equally competent surgeon, a very big name in bariatric and laparoscopic surgery. And we actually keep on trying to actually spread this knowledge, because I myself do a lot of bariatric surgery, and starting right from sleeve gastrectomies to the bypass surgeries. But I will once again say that every surgeon who is a student of bariatric surgery or practices bariatric surgery, who wishes to practice bariatric surgery, should remember this photograph, which explains everything. And I think that this topic is the need of the time, because the epidemic of obesity has grown out of hand, not only in Pakistan, but whole of Asia and the other countries of the world as well. Because some or the other, I feel very strongly that physiologically we are not designed to have a lot of fats. But since there's a recent surge in the intake of fast food, which is basically composed of a lot of fats, fried fats. So I think that this is one of the sole reasons that this sudden rise in obesity is there. And that is the sole reason that there is actually, you know, it is in the West. और मैं इसके बारे में ये बात बताता चलूँ, जो कहा जाता है कि जो है ना obesity runs in the family. Actually, it is not. In obese families, nobody runs actually. So nobody is doing the exercise. So two things are most important in the whole of the subject of bariatric surgery. That if people want that, we should actually try to stay away from obesity. One of the foremost things is that you should consume less amount of food, not more than what is required, especially reduced amount of the fats, and at the same time do a lot of exercise, so that whatever you actually you know, take in as calories, it is burnt out. Because the human body just works like a bank. जिस आप बैंक में आप पैसे डालते जाएं तो बैंक बैलेंस आपका बड़ा होता जाता है और आप खर्च ना करें. इस तरह similarly, if you keep on putting calories in the human body and you do not actually burn these calories, then you will become obese. And then there are various ways. There's certain dietary patterns, there's certain exercises, there are certain surgeries, there's certain medicines which can help you out. But if you're not careful, you know, out of more than 700 bariatric surgeries which I've performed, I've only come across 2 people who have regained weight. And both of the girls are named by the name of Rubina. So I remember them very distinctly. And the only reason that they became obese again, both had sleeve gastrectomies, that they started food cheating. So if you are not fully convinced, and if you're not psychologically in a frame of mind that you are going to lose weight and you're going to sustain weight, because apart from the diet and the exercise and the surgery, one of the very important component is the provision of the nutritional advices and the provision of nutritional support, and at the same time guiding the people, the psychological you know, aspects as well, so that people get a weight loss and then they are able to sustain that weight loss
and they do not go back and indulge in the same habits in which they are there. And I totally agree with Luqman, and I'm sure that Imran also agrees with us that the Asian population has got a different configuration as far as the physiology and the anatomy of the body is concerned. And we will develop type 2 diabetes even if we are not very much obese. So we have to be significantly more careful as compared to the Western population because you know that diabetes is rampant, hypertension is rampant, and because of obesity, the cardiac diseases are there, the arthritis is there. So the mother of all diseases, which is obesity, has to be curtailed if you have to achieve longevity of life. So once again, since you know that I am at the chairman of Professor Furla Chaudhary, I'm sitting on the side just to be there. For the next lecture, I'll just mute myself and keep on listening to the lecture. And if the dua is not on at that time, I will try to comment it on that as well. So thank you very much, Osman. Thank you very much, Luqman Osman. Thank you very much, Imran, for being here for the next lecture. And my all, praise for Professor Mulazim Hussain Bukhari for arranging this wonderful talk, because everybody who's listening or is seeing this talk is definitely going to benefit from it. So thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you so much. Over to you, Professor Imran Abbas. Assalamu alaikum, sir. First, sir, Assalamu alaikum, Imran. Please stop sharing. Click stop sharing. Dr. Luqman, please click stop sharing. Then I can share my slides. And so much thanks, Professor Mahmood Ayaz, because you are always supporting and also encouraging. Really appreciable, and we are trying our best. Sharing knowledge, that is the more important, and especially metabolic impact of bariatric surgery. That is, I cannot ask, so this is the new thing, but especially in our region, still need to talk more and more about this. Okay, great. Sir, I will, sir, just, I will share my slide. So Imran, in the meantime, if you don't mind, I would like to put in a slight personal comment. You seem to be a bit, you have seen that you've gained a bit of weight. या मुझे स्क्रीन पे ऐसे लग रहा है, so be very careful. नहीं सर, गेन नहीं किया मैं, वो ठीक है, शायद वो सिटिंग पोजीशन ऐसी है. अच्छा ठीक है, या शायद वो सिटिंग, अच्छा ठीक है, नहीं, it's quite all right. Thank you sir. Just my, can you see my slides? प्रोफेसर अयाज साहब जब से वीसी बनी है ना, वजन कम हो रहा है. जी सर, वो बस ये हुआ था कि कुछ जो जॉब है उसका तकाजे भी होते हैं ना, ये थोड़ा सा आपको जो है ना वो सर यू आर स्मार्ट सर, माशाल्लाह. सर मेरी आप देख सकते हैं या नहीं अभी तक स्लाइड? नहीं इमरान, अभी आपकी ना स्क्रीन नजर नहीं आ रही, but we can see you as well. We can wait, though, there's no problem. I think we are a few minutes away from the dua, so I'd like to join. अब मेरा एक सवाल भी है, मैं अयाज साहब से करूंगा आखिर में सवाल. जी सर बताइए. नहीं सर, आखिर में करूंगा कि आपने सवाल, ये डॉगर साहब आपको अभी सवाल खत्म नहीं हुआ, इमरान के लेक्चर के बाद शुरू करेंगे क्वेश्चन. प्रोफेसर डॉगर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग. इमरान आप ऐसे ही कमेंट कर दें. सर मैं अगर थोड़ी सी स्लाइड दिखा देता, इट वाज वेरी, आई हैव प्रिपेयर्ड माय स्लाइड्स, लेकिन व्हाई आई कैन नॉट, आई हैव नो आइडिया. वो मुझे आपने दिया हुआ है एक्सेस के मैं कर सकता हूँ शेयर? दिया हुआ है, एक्सेस दिया हुआ है. जी व्हाई आई कैन नॉट, आई हैव नो आइडिया. अच्छा सर, ऐसा आप सर इमरान, वो जहाँ पे शेयर लिखा हुआ है ना, उसको शेयर के बटन को दबाएं. ग्रीन है ना नीचे, ग्रीन वाला, उसको आप जरा करें ना. सर मैं यूज्ड टू हूँ, हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं. नहीं, मैं इमरान आपको एक थोड़ी सी इसको टिप बताऊं. आप अपना लैपटॉप है ना, उस पर अपनी प्रेजेंटेशन पहले खोल ले, उसको मिनिमाइज कर लें, हुई हुई है बस. अब उसको जो नीचे सबसे नीचे आपको शेयर वाला बटन नजर आ रहा होगा. वदीद देखें कि ये क्यों नहीं शेयर कर पा रहे. वदीद जरा देखो, मैं अपनी आईटी टीम से कहता हूँ, वदीद जरा देखो क्यों नहीं शेयर कर पा. मैंने सर वही किया है, उसको उसी पे रखा है मैंने, और सेम
डॉक्टर अहमद, प्रोफेसर अहमद उजैर भी माशाल्लाह मौजूद हैं। बड़ी बड़े पिलर्स बैठे हैं आज माशाल्लाह सर्जरी के। अस्सलाम वालेकुम सर। जी ये देख ले, मैं क्यों नहीं शेयर कर पा रहा। वदीद, हेलो वदीद, आप चले, मेरा ख्याल है कि आप ऐसा करें, अपने सामने खोल के अपने हमें वैसे बताना शुरू कर दें। सर वो बड़ा अच्छा था, अगर एक बड़ा अच्छा मैसेज जाता, अगर 1 मिनट सिर्फ मैं उसको हाँ वदीद हाँ को नहीं, हम दोबारा, इंतजार करते हैं, आप करें। आप 1 मिनट। अच्छा सर, इसी में सवाल का मेरा ये था कि चलें ये बाईपास सर्जरी मोटापे में तो करते हैं। अयाज साहब आपसे सवाल था कि ये बात जो जी सर। डायबिटीज मेरे जैसे पतले बंदों को वैसे तो नहीं है लेकिन हो जाती है, तो क्या वो भी ये बाईपास सर्जरी करवाएं या ना करवाएं, या वो? सर इसका देखें, जो मैकेनिज्म है ना फॉर गेटिंग कंट्रोल ऑफ एक्चुअली जो है ना डायबिटीज, इट इज नॉट ओनली दैट अगर आप स्लीप गैस्ट्रेक्टमी कहें तो आपकी जो है ना जो रिस्ट्रिक्शन ऑफ फूड इनटेक हो जाती है, तो रिस्ट्रिक्शन हो जाती है तो खाना थोड़ा खाना शुरू हो जाते हैं, या बाईपास करते हैं तो खाना ठीक प्रॉपर तरीके से हजम नहीं होता, खाना स्टमक में थोड़ी देर ठहरता है, जल्दी से इंटेस्टाइन्स में चल जाता है और वहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती। ये देखा गया है कि मच बिफोर द एक्चुअल वेट लॉस स्टार्ट्स हैपनिंग, राइट फ्रॉम द डे फर्स्ट और डे सेकंड और थर्ड के ऊपर तो वेट लॉस इतना नहीं हुआ होता ना, हार्डली फ्यू लाइक 250 ग्राम्स या 500 ग्राम्स होगा बहुत ज्यादा, क्योंकि पेशेंट को अपने खाली पेट रखा होता है। लेकिन डायबिटीज का कंट्रोल मतलब बहुत शुरू में, पहले दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन शुरू हो जाता है। अब ये जब चीज को इसको ऑब्जर्व किया गया, तो इसकी हिस्ट्री कुछ इस तरह है कि जब आपको पता है कि 1950s और 1960s में जब जो सर्जन जो है वो सी स्टमक के लिए डिस्टल गैस्ट्रेक्टमीज करते थे या टोटल गैस्ट्रेक्टमीज करते थे और ईसोफेगस को जेजुनम के साथ जोड़ते थे, या जो प्रॉक्सिमल स्टमक रह था उसको जेजुनम के साथ जोड़ते थे, तो उसमें एक रिमार्केबल इफेक्ट देखा गया कि बहुत से मरीज ये जो कि डायबिटिक होते थे उनकी शुगर कंट्रोल हो जानी शुरू हो जाती थी और उसके बाद उनका वेट लॉस भी शुरू होता था। वेट लॉस की तो वजह समझ में आती थी, लेकिन इसके ऊपर जब इमरान साहब ने बहुत ब्यूटीफुली फोरग्रेलिन की रिडक्शन का अमाउंट और जो है ना फोरगट थ्योरी और फाइनगट थ्योरी दी, और वो सारा उसको ब्यूटीफुली इस डायग्राम में एक्सप्लेन किया, दैट इज द सोल रीजन के मतलब मच बिफोर एक्चुअली द एक्चुअल वेट लॉस हैपन। वेट लॉस तो डेफिनेटली हेल्प करता है, बट बिकॉज ऑफ दैट मैकेनिज्म जो है ना, वो जो ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड वो रिलीज होता है और वो जो इंक्रेटिन्स इंक्रीज होते हैं जो इंसुलिन की प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, जो ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं, ये सारे मैकेनिज्म जो है ना ये एक्चुअली इंस्टिगेट हो जाते हैं राइट फ्रॉम द डे 1 इमीडिएटली आफ्टर द सर्जरी। अब चूंकि मैकेनिज्म इंस्टिगेट हो जाते हैं तो ये नेचुरली शुगर का कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। तो सो जनरली देयर इज अ जनरल इंट्रोडक्शन for the patients that once we perform a sleep gastrectomy or a gastric bypass, मैं उनसे यही कहता हूँ कि आप अपनी शुगर की दवाइयां लेनी पहले चंद दिन बंद कर दें। हम उस शुगर के पैटर्न को वॉच कर रहे होते हैं, बिकॉज अगर हम उसको बंद ना करें तो वो सडनली हाइपोग्लाइसीमियाज होने शुरू हो जाते हैं। मेरे ख्याल में शायद स्क्रीन शेयरिंग होने लगी। अच्छा चले, विल ट्राई। तो उसकी वजह से ऐसा होता है बिकॉज ऑफ दिस हाइंडगट फैक्टर्स एंड द फोरगट फैक्टर्स, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है कि शुगर बहुत जल्दी कंट्रोल होनी शुरू हो जाती है। छोटा सा मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, लाइक ये जो ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड जो है ना, ये रिलीज होते हैं, ये इनकटिन्स को बढ़ा देते हैं। इनकटिन्स के बढ़ाने की वजह से जो है ना वो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है, इंसुलिन प्रोडक्शन ज्यादा होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम ये शुरू होती है कि राइट फ्रॉम द डे 1 मच बिफोर एक्चुअली। जी सर, जी सर, जी सर। इमरान, मेरा नहीं ख्याल, ये आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं इसको शेयर कर दूं। सर प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी थी, मुझे खुद समझ नहीं आ रही, हम तो यूज टू हैं डेली हमने तो बेसिस अलाउ पे, किया हुआ है, हमने तो अलाउ किया हुआ है आपको। हम सर आप डेली बेसिस पे ये प्रेजेंट कर रहे होते हैं। मुझे खुद वो अंदर नहीं हो रहा कि वाई ये नहीं हो रही, नहीं तो मैं चलो उस तरह असल चाह रहा था कि एक अच्छी प्रेजेंटेशन दे दूं, एक अच्छा मैसेज चला जाएगा। डेस्कटॉप पे बैठा हूं मैं और ये अपनी मेरी बिल्कुल रेडी है इसमें, और फिर हम सर एक सजेशन है कि जी आप अपने अकाउंट से एक मीटिंग शेड्यूल अभी कर लें, वो लिंक मुझे हमारे साथ व्हाट्सएप शेयर कर कर दें। लें व्हाट्सएप हाँ, पे, मुझे व्हाट्सएप हम कर उस दें, पे मैं ज्वाइन कर खुद शेयर लेते हैं। कर। हाँ, ये भी है। मैं तो सर अभी कर दूंगा 1 मिनट में।
आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं फिर इसको देख लेता हूँ। लेकिन अनबिलीवेबल, ये क्यों नहीं हो रही? हो जानी चाहिए, क्योंकि आपका भी जूम ही है सर। हाँ, आप मुझे व्हाट्सएप करें ना ज़रा। सर मैं अभी करता हूँ। अच्छा, डोगर साहब आप सवाल पूछ रहे थे, इकबाल डोगर साहब, प्रिंसिपल गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज। सर इसी देर में आप सवाल पूछ लें। प्रोफेसर डोगर साहब। जो इस यानी कि ऑब्वियसली प्रोफेसर महमूद अयाज ने बहुत अच्छा बताया है, लेकिन आई थिंक इसमें जो आपका सवाल था ना कि अगर लोअर बीएमआई का पेशेंट है उसको क्या सर्जरी हाँ। हो सकती है, तो उसकी सर्जरी यकीनन हो सकती है। अच्छा, अच्छा, लेकिन नहीं इसके अंदर जो उसकी फिजियोलॉजी समझने वाली बात है कि इसकी फिजियोलॉजिकल बेसिस क्या है। उसकी फिजियोलॉजिकल बेसिस ये है कि जी इसको कहते हैं, प्रोफेसर मुलाजिम बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो पूछे इसका पूछे थोड़ा सा मैं अस्सलाम बयान वालेकुम कर जी। रहा था, थोड़ा सा मैंने ऐसे ही दरमियान में दाखिल आवाज हो आ गया। रही सर? नहीं, अपना ये लुकमान साहब सवाल का जवाब दे रहे हैं, इसके बाद आप सवाल पूछ। जी जी। सर जी इसको लुकमान सर, साहब। इसके बारे में सर एक फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है, उसे कहते हैं सेट पॉइंट थ्योरी। सेट पॉइंट थ्योरी ये है सर, क्योंकि सर ये थ्योरीज ही है ना, सारे हाइपोथेसिस से थ्योरी बने हुए हैं। ये जो थ्योरी दी सेट है। पॉइंट थ्योरी ऑफ वेट है, इट्स नोन एज अ सेट पॉइंट थ्योरी। वो ये कहती है कि जब पेशेंट का वेट गिरता है ना, तो वो फाइट बैक करता है। जब भी मैं ये बल्कि मैंने अपने आप के साथ देखा हुआ है, मैं भी एक जमाने में ओबीज था, कि जब आप ओबीज होते हैं और आप अपना वेट लॉस करते हैं तो बॉडी फाइट्स बैक फिजियोलॉजिकली। उसको कैसे फाइट बैक करती है कि आपके जो जो आपकी जो हंगर हार्मोन है वो बढ़ता है, आपकी सेटिएटी कम हो जाती है, आपके जो फैट सिग्नल्स आ रहे होते हैं वो बताते हैं कि खाओ पियो भाई, यू हैव टू ईट समथिंग, यू हैव टू ईट टू सर्वाइव। उसमें लेप्टिन है, जो एक मैंने स्लाइड मिस की है, उसमें लेप्टिन है, उसका सर्ज आ रहा होता है। ठीक है जी। तो ये है कि हम यहाँ सर ईस्ट एशिया में, जहाँ मैंने ऑब्वियसली राइट नाउ आई एम राइट नाउ, तो जो ज्यादातर जो लोग हैं वो लो बीएमआई के पेशेंट्स होते हैं, हमारे पेशेंट्स ही लो बीएमआई के होते हैं। ऑब्वियसली उसमें उनका जो सेट पॉइंट है वेट का, वो थोड़ा सा लोअर एंड पे आता है। लेकिन ये होता है दे डोंट डिसअपियर टोटली, बिकॉज ऑब्वियसली जो एक बॉडी की जो सर एक है ना एबिलिटी टू फाइट बैक, वो आपके हाइपोथैलेमस से है। जो हमारा जो हम ये सोचते हैं कि शायद हम जो एज एन ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं, वो हम अपने सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स की वजह से सर्वाइव कर रहे हैं। इट्स नॉट सो। हम सर्वाइव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर ओल्ड ब्रेन, which is hidden inside cerebral hemispheres. उसमें hypothalamus is the seat of all of these connections, जिसके अंदर जो आपके जो हार्मोन्स और जो आपके जो नर्व्स हैं, they all meet। और वहाँ जो इंटरेक्शन होती है, उससे जो है पेशेंट के अंदर एक कैपेसिटी होती है टू फाइट बैक। और वो जो कैपेसिटी है which is amazing, उसमें ये होता है कि पेशेंट देन ट्राइज टू कोप विद। मैं आपको बताता हूँ कि जो पेशेंट्स होते हैं, ओबेसिटी के पेशेंट्स होते हैं, जिनको हम मैनेज करते हैं, टाइम हम देखते हैं कि दे टेंड टू टेक अ लॉट ऑफ शुगरी सॉल्यूशंस टू फाइट बैक। उनका वेट रिगेन होना शुरू हो जाता है। एज प्रोफेसर महमूद अयाज कह रहे थे अभी कि वो चीटर्स होते हैं। दे आर चीटर्स, दे आर नोन एज चीटर्स। ये टर्म है चीटर्स की, दे आर फूड चीटर्स। वो चीट करते हैं आपको, आप उनसे बैठे होते हैं, आप उनसे बात करते हैं, आप उनका इंटरव्यू कर रहे होते हैं, वो आपको झूठ बोल रहे होते हैं आपके साथ। फिर उसका क्या तरीका होता है, हम क्या करते हैं, वी सेंड द पेशेंट टू द न्यूट्रिशनिस्ट। यानी कि मैं हैरान होता हूं कि पेशेंट सर्जन के साथ तो समटाइम्स इज नॉट टेलिंग द ट्रुथ, बट व्हेन अ सेकंड पार्टी इज इन बिटवीन, लाइक अ न्यूट्रिशनिस्ट, लाइक अ ब्रिज, उससे अपने दिल की बात कर देता है। एंड वो ये एक स्लिप ऐसा ऑफ है कि टंग होती इमरान अब्बास, हम इसी टॉपिक को अगले संडे दोबारा इसी तरह कंटिन्यू करेंगे और है। आप जी जी उसमें स्पीकर होंगे। अब जी। मसला मेरे ख्याल है थोड़ा सा कमेंट, हम 11 बजे, यहाँ साहब मेरा ख्याल है आप लेट हो गए हैं, काफ़ी सारे लोग बैठे होंगे। तो इमरान आप कमेंट करो, अगले संडे 11 बजे इंशाल्लाह इसी कंटिन्यू करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और मैं थैंक यू सर। प्रोफेसर महमूद अयाज साहब को भी कहूँगा कि वो भी ना प्रेजेंटेशन देंगे, क्योंकि पाकिस्तान में यहाँ पे ये जो बाईपास सर्जरी, जेरियाटिक सर्जरी, प्रोफेसर महमूद अयाज भी इसके एक्सपर्ट हैं। और लेप्रोस्कोपी के और आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, रिपोर्टिक के ऊपर अयाज साहब के बहुत अच्छे लेक्चर आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल है कंटिन्यू डॉक्टर इमरान अब्बास फ्यू मिनट्स, और फिर इसके बाद हम आज क्लोज करते हैं उसके लिए, क्योंकि टाइम काफ़ी हो जी। इमरान अब्बास। जी सर बिल्कुल, सो मच थैंक्स। बस अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता क्यों नहीं शेयर हो रही, वरना एक रूटीन का हमारी एक नेक्स्ट है। 11 बजे इसी टाइम इंशाल्लाह, जिंदगी रहे। इंशाल्लाह सर वो सर।
एक ही स्पीकर एक टाइम पे शेयर कर सकता है। काइंडली आप दोबारा ट्राई करें क्योंकि पहली शेयरिंग बंद हो गई है। अब दोबारा ट्राई करें सर। अब लेट हो गए हैं यार। महमूद आप अपना सॉरी अपना वदीद, अगली संडे दोबारा इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह 11 बजे। ठीक है इंशाल्लाह। मेरा नेट से चला गया था, आई थिंक सो। तो मैं अभी सिर्फ सर प्रेजेंटेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें कर लेंगे, जस्ट अपने चेक करने के लिए कि क्या वो हम ठीक हैं कि नहीं। स्टिल आई कैन नॉट। आप देखें ना, आप नहीं कर सकते मेरे ख्याल। जी सर, तो उसमें सर देखें कुछ चीज़ें हमें बेसिक, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो समझनी चाहिए। अलबत्ता डॉक्टर लुकमान ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। ये असल शुरू कहाँ से हुई थी मेटाबॉलिक सर्जरी में, बहुत शॉर्टकट इसको बता दूं। हिस्ट्री नो डाउट, फिर प्रोफेसर मैसन 53 में, फिर जो असल मेन जो मेटाबॉलिक सर्जरी शुरू हुई वो शुरू हुई मिशाइल गानी और रूबिनियो ने। ये 2004 की बात है। ये दोनों बंदे उस टाइम कैलिफोर्निया में थे। इन्होंने ये देखा कि जब भी एनी टाइप ऑफ बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद हाइपोग्लाइसेमिया होता है, ये क्यों होता है, इस क्यों के पीछे जब सर्च की और रैट्स पे उन्होंने काम किया और उनको उस टाइम उन्होंने डिटेक्ट किया और एक हाईलाइट किया कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट एंडोक्रीन। और फिर उसके बाद GLP-1 का सामने आना, GIP, PYY, एल सेल का रोल, और फिर GLP-1 जो हमारा मेन लीडर है मेटाबॉलिक सर्जरी में, उसका इंपैक्ट बीटा सेल पे, बीटा सेल की हाइपरट्रॉफी, और उसके बाद इंसुलिन की प्रोडक्शन और ग्लू2 रिसेप्टर्स जो हमारे स्केलेटल मसल पे हैं उनकी सेंसिटिविटी इंक्रीज करना। फिर उन्होंने एक फॉरगट एंड हाइंड गट हाइपोथेसिस, एंटी इंक्रेटीन्स, एवरीथिंग जो ऑलरेडी एक्सप्लेन। मैं दो तीन चीजें हाईलाइट करना चाहता हूं इस प्लेटफॉर्म पे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट इन माय ओपिनियन। हु इज गुड कैंडिडेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, जब हम ओबीस की बात करते हैं वो तो ठीक है, जब 30+, अब जब भी एक पेशेंट मोरबिड ओबीस है तो वो तो कोई ठीक है, एटलीस्ट ओबेसिटी तो उसकी ट्रीट हो रही है ना, हमारी बात हो रही है। ये बहुत ट्रिकी पॉइंट है कि हमारी बात, ये इस पे बहुत काम किया है। अभी मैं, क्योंकि एवरी ट्यूसडे मैं एक इंटरव्यू करता हूं और मैंने जो ट्यूसडे एल्पर चिलेक का करना है, हमारा टॉपिक ही यही है कि लो बीएमआई, आप कौन सा पेशेंट आपको गुड कैंडिडेट है फॉर दिस सर। ये बहुत, ये सिलेक्शन, अगर हमने सही सिलेक्शन नहीं की, हमारी पूरी ये सर्जरी का, स्पेशली इन पाकिस्तान, क्योंकि वहां आपको पता है वो सोशल मीडिया है, बातें करना शुरू कर देते हैं, टोटल आपकी सर्जरी जो एक इतनी अच्छी सर्जरी है वो अंडर क्वेश्चन हो जाएगी। और मैं भी अपने ग्रुप्स में देख रहा हूँ, हमारे कोलीग्स हद तक कमेंट पास कर रहे हैं क्योंकि उनको आइडिया नहीं है। वो ये समझते हैं कि वही है जो हम कर रहे हैं, वो नहीं है जो हम कर रहे हैं। ये आपको जब लो बीएमआई में ना आप रूअनवाई कर सकते हो, ना आप मिनी कर सकते हो, ना आप स्टैंडर्ड स्लीप कर सकते हो, तो कौन सा पेशेंट इज गुड। हमें तीन चार चीजें देखनी है। ठीक है, इफ्सो ने हमें कहा है कि आप BMI 27.5 अबव, लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, BMI 30 से नीचे ऑपरेट नहीं करें, बिल्कुल नहीं रेस्पॉन्स होगा। मैंने हंड्रेड्स ऑफ केस किए हैं। BMI 30+ मस्ट क्लास 1 ओबेसिटी हो। सेकेंड चीज जो हमें बहुत केयर करनी है, हमें लाडा को रूल आउट करना है जो डायबिटीज 1.5 है। अगर हमने ऑटो इम्यून इम्पैक्ट जो होता है, मैंने खुद देखे हैं पेशेंट इनमें है, और हमारे पाकिस्तान में सिर्फ, मैं ये किसी कंपनी का या उसका नहीं, मैं वो हमारा कोई उससे रिलेशन नहीं, लेकिन ओनली IDC लैब जो है स्टिल वो डिटेक्ट कर सकते हैं आइलेट सेल एंटीबॉडी, जो मेरा एक्सपीरियंस में भी, प्रोफेसर मुलाजिम नो बेटर देन मी, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और फिर हमने बीटा सेल रिजर्वायर को मस्ट देखना है कि आपने, अगर सी पेप्टाइड आप चेक करें, और वो भी दो किस्म का हम चेक करते हैं, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे नहीं फायदा, आप नहीं रिजल्ट लेंगे। मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं, और कोई डॉक्टर ऐसा नहीं करता अनफॉर्चुनेटली। आपको एक फास्टिंग करना है उसका, और उसके बाद आपको तकरीबन आधे घंटे बाद 500 ग्राम आपको, अबाउट 500 ग्राम ग्लूकोज समथिंग पेशेंट को देना होता है, जिसे हम कहते हैं कि स्टिमुलेटेड। आपने इसका सी पेप्टाइड चेक करना है, यानी आपको दो टेस्ट करने हैं, एक फास्टिंग और उसके बाद आपको स्टिमुलेटेड, उसमें सी पेप्टाइड भी आपने देखना है, सेरम इंसुलिन भी देखनी है। और अगर इनका 20% आपने राइज देखा, देन इट विल बी इफेक्टिव, अदरवाइज इट इज नॉट इफेक्टिव। यानी ये सिंपल चीज नहीं है कि हम जस्ट कहें पेशेंट डायबिटिक है, और क्योंकि पेशेंट इस माइंड सेट से आता है कि मैंने डायबिटीज की सर्जरी कराने आ रहा हूं और मैं लो बीएमआई जब हम कहते हैं तो ये 30 to 35 है। जब 35+ हो जाएगा, क्लास 2 ओबेसिटी है,
कुछ उसके बेनिफिट्स हैं। 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स आर नॉट गुड कैंडिडेट, हमें मस्ट रूल आउट करना है इनका। और हमें ये देखना होता है अगर पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, पेशेंट का लॉन्ग टाइम है, उसमें नेफ्रोपैथी हम मस्ट चेक करते हैं इन पेशेंट्स को। इनके मैं मस्ट इनको ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट, हमने रेटिनोपैथी, क्योंकि अगर इसकी 7 माइक्रोवेस्कुलर साइड इफेक्ट्स हैं फिर भी सर्जरी के इम्पैक्ट हैं, लेकिन उस तरह नहीं कि पेशेंट के रेमिशन हो जाएगी, ऐसी चीज नहीं है। यानी सी पेप्टाइड मस्ट देखना है, हमने लाडा मस्ट रूल आउट करना है, और कोशिश करनी है कि वो जो स्टैंडर्ड है हमारा कि सी पेप्टाइड और उसका फास्टिंग स्टिमुलेटर चेक करें, फिर पेशेंट से बैठ के बात करें। फिर भी मेरे 1-2 केस हैं जिन्होंने रेस्पॉन्स नहीं दिया इन सारी चीजों, जबकि पेशेंट में वो सारी चीजें थी। उससे हमें ये समझाना होता है कि तुम्हारी इंप्रूवमेंट होगी, नॉट रेमिशन। जब उनको ये क्लिक हो जाए कि हमारी इंप्रूवमेंट क्या चीज है, तो जो माइक्रोवस्कुलर आपके साइड इफेक्ट्स हैं डायबिटीज के, वो हम रोक सकते हैं, जो डेफिनेट रोक सकते हैं। ये प्रूव्ड है कि अगर पेशेंट की प्रोटीनूरिया या माइक्रो, आप 3 महीने बाद चेक करके देख लें पेशेंट जो कोरोनरी आर्टरीज की, अगर आप फिर 3 महीने बाद उसकी जाके आप सीटी एंजियो कर लें, ये चीजें तो प्रूव्ड है। क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस जो है, और फिर आप सारे आपके सामने तो सूरज के सामने दिया, तो देखें जो एथेरोस्क्लेरोसिस 2 टाइप है, एक तो जिसमें कैल्शियम डेपोजिशन हो जाती है, फिक्स्ड है वो तो हम, लेकिन जो जिसे हम कहते हैं जो अभी इमेच्योर है या स्टिल देयर इज फैट डेपोजिशन जो मेन होती है, तो यकीनन वो इसके बाद जब भी हम एनी टाइप ऑफ जीआई ट्रैक में वेरिएशन देंगे हम उसका रिजल्ट लेते हैं। तो यकीनन हमारे लिए, मेरे लिए पर्सनली ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि जब प्रोफेसर महमूद अयाज जैसा आदमी इस एक न्यू जो एक इनोवेटिव है हमारे मुल्क में, जबकि हम दुबई यूके यूएस में रूटीन की चीज़ है, अगर हमारी बैक पे हो, हमें पब्लिक अवेयरनेस सेशन रखने चाहिए अपने डॉक्टर्स के लिए, पहले तो अपने सर्जन्स के लिए, डियाबिटोलॉजिस्ट के लिए, कि हम जो कह रहे हैं ऐसे नहीं कह रहे हैं। ये मेटाबॉलिक इम्पैक्ट जो है, जिस तरह प्रोफेसर साहब ने मेंशन किया, विदाउट वेट लॉस और विद वेट लॉस है। विदाउट वेट लॉस वो टिपिकल वही चीज जो डॉक्टर लुकमान ने बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने इसको डिमॉन्स्ट्रेट किया कि वो जब अनडाइजेस्टेड फूड न्यूट्रिएंट, जब भी हम एनी टाइप ऑफ गैस्ट्रिक बाईपास पार्शियल करें, जिसे हम सासी कहते हैं, एक वाइड स्लीव, जब पेशेंट लो BMI 30, तो नो नीड टू गो फॉर रूअन वायर मिनी, जस्ट वी मेक अ वाइड स्लीव, और सासेज इसे कहते हैं ना सासी, क्योंकि सासी में बहुत वेट लॉस हो जाता है। हमें डीजे से जाके अबाउट 200 सेंटीमीटर हम जस्ट साइड टू साइड गैस्ट्रो यजनास्टोमी ओनली 3 सेंटीमीटर के फूड सारी इसमें नहीं है, वो ड्यूडीनम की तरफ भी है, उसमें फॉरगट थ्योरी नहीं है, लेकिन हम हाइंड गट थ्योरी से फायदा उठा रहे होते हैं कि अनडाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट आइलियम में जाएं, एल सेल को जो टर्मिनल आइलियम को टच करे, GLP-1 PYY GIP जो जिस तरह डॉक्टर साहब ने मेंशन किया, जो एनालॉग आजकल मुंजारो वीगोवी यानी GLP-1 प्लस GIP मुंजारो है, और अभी न्यू जो जनरेशन आ रही है उन्होंने ग्लूकागोन को ऐड किया, वेरी और बड़ा इफेक्टिव भी है, इसमें नो डाउट। नेचुरल मुंजारो हमारी बॉडी में है, हम जस्ट थोड़ी सी, हमें गरीब मुल्क हैं, दुबई में वो अभी यहाँ दुबई में 4 जो मिलते हैं तकरीबन 1200-1300 दिरहम, 1 लाख रुपए के 1 महीने का, तो पाकिस्तान में कितने लोग इसको पे कर सकते हैं? तो लेकिन हम एक छोटी सी वेरिएशन से, सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर पेशेंट्स, हर डायबिटिक पेशेंट इज नॉट, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में यंगस्टर शुरू हो जाते हैं, वो कहते हैं तो कुछ भी नहीं है, हम भी कर रहे हैं, 4 स्टेपलर ही तो लगाने हैं, उसमें फेलियर के चांस ज्यादा होंगे अगर सही पेशेंट सिलेक्शन नहीं होगी। मैंने सर टाइम लिया, जस्ट एक थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थी, बाकी इंशाल्लाह अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट शेयर माय। Dr. Imran, thank you so much. Dr. Uzair, Ahmad Uzair Qureshi, would you like to say something? Dr. Ahmad Uzair, Professor Dogar Saab, Professor Dogar Saab, Professor Dogar अस्सलाम Saab, वालेकुम जी, आवाज आ Professor रही इकबाल सर? डोगर साहब, प्रिंसिपल गुजरात जी आवाज आ रही टेक्नोलॉजी। सर? जी अस्सलाम, बिल्कुल आ रही, आवाज आ रही सर? आ रही है सर। अच्छा सर, मैं थैंक यू वेरी मच, जो है ना वो जी जी बड़ी वी आर अच्छी जो है ना हेयरिंग यू। जी जी सर आ रही एक आ जो है रही ना आ रही। वो एक क्वेश्चन मैंने करना था कि ये जो डायबिटीज है सर, ये पाकिस्तान में इस टाइम जो है ना वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि डायबिटीज, मेरे ख्याल में जो मेरी एक अंडरस्टैंडिंग सी डेवलप हो रही है कि शायद जो है ना वो इसकी मेन काज जो है ना वो
ओबेसिटी भी होगी, लेकिन स्ट्रेस और जो हमारा मेंटल हेल्थ है आवाज ब्रेक होगी। वो भी एक बहुत बड़ा ट्रिगरिंग फैक्टर है। इसमें मैं जरा अपने जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे ओपिनियन लेना चाहूंगा कि वेदर आई एम थिंकिंग आर राइट और इट्स नॉट द कॉज। सर मैं अगर एक जस्ट एक कमेंट इस हवाले से देखें, डाइट जो है हमारी वो डोमिनेंट है, इसमें नो डाउट स्ट्रेस, लेकिन जो वीट है हमें वीट फ्री होना होगा। और इस टाइम दुनिया में बड़ी इस पे बात हो रही है। मैं लास्ट टाइम जब ASMBS के उसमें अमेरिका में था सेंटेनियो में, तो एक हमारा पूरा सेशन मेटाबॉलिक सर्जरी और डाइट पे था। और हमारी अहादीस में अगर आप पूरी अहादीस देखें, जौ के बारे सारा हमने सुना। ये वीट पता नहीं कहाँ हम इंसानों की मेन डाइट में आ गए, और हम लोग तो खाते ही गंदम ही है। आप खुद बेहतर समझते हैं, इसमें सारा वो ग्लूकोज है, उसमें ग्लूटीन है, और ये चीजें प्रूव्ड हो चुकी हैं जो मैं कह रहा हूं। अगर हम अपनी Absolutely. फूड में से जितना कम कर लेंगे वीट को, मैंने प्रैक्टिकली कितने अपने पेशेंट्स, मेरे अपने जाती पेशेंट्स, मैं हमेशा कभी भी उनको पहले नहीं कहता आप सर्जरी कराएं, पहले उनको हम हेल्दी लाइफ, क्योंकि ये हेल्दी लाइफस्टाइल इसका इलाज है। टाइप 2 डायबिटीज का ट्रीटमेंट हेल्दी लाइफस्टाइल है, ना टेबलेट है, ना इंजेक्शन है, ना उसका कोई सर्जरी है। हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल पे टॉप पे डाइट है। डाइट पे हमें वीट फ्री होना होगा। हमें अपनी कौम को ये मैसेज देना होगा, पब्लिक अवेयरनेस सेशन रखने होंगे कि आप अपने आप को वीट फ्री करो। जौ पे आओ, जौ के पकाने के तरीके हैं, मल्टीग्रेन पे आ जाओ, लेकिन जौ इज अ मच बेटर, क्योंकि वो एक किस्म का हमारे पास कम्प्लेक्स कार्ब है और वो स्लोली अब्जॉर्प्शन होती है, वो ग्लूकोज नहीं है प्योर जो वीट है। अगर हम यही कर लें सर, मैंने प्रैक्टिकली देखी है ये चीजें जो मैं कह रहा हूँ मेरे अपने। की बात काट रहा हूँ इमरान, एज आई अंडरस्टैंड मिलेट कहते हैं इसको, मिलेट, मिलेट है ये जौ जो है। यस जो नहीं यस, सर, बार्ले, बार्ले। बार्ले बार्ले बार्ले, बार्ले बार्ले बार्ले। बार्ले, इट्स नॉट मिलेट। अच्छा, जी बार्ले। सर, ये बार्ले है। अच्छा बार्ले। अभी सर इसमें बड़ा काम हो रहा है, और आप देखें जैपनीज ने स्टार्ट किया। तकरीबन वीट फ्री हो चुका है, आप सर्च करके अच्छा देख ले। अच्छा और अच्छा। डायबिटीज लोग उनकी ड्रॉप हो चुकी है। और अभी तो हमारी उस टाइम सेशन में बात हो रही थी US में, मैं वहां फिटनेस था कि वो ये बात कर रहे थे कि हमें अपनी बेकरी प्रोडक्ट्स को बार्ले पे लेके जाना चाहिए। ये मैंने खुद सुना है, मैं मीटिंग में था जब वो ये बात हो रही थी। तो ये लास्ट टाइम जब हमारी टेक्सास में हुई, वो कह रहे हैं हमें अपनी जितनी हमारी डेयरी प्रोडक्ट, सारी बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, इनको हम बार्ले पे, तो हमें इस पे जाना होगा हमें। और हमारा तो जो वीट है इस टाइम गंदम, यानी चलो स्टेप्स भी हम कर लें तो हम कहते हैं चक्की वाला आटा फुला थोड़ा बेहतर, वो सर वीट इज नॉट गुड, ये मैं क्लियर कट कह रहा हूँ। मैं बहुत पेशेंट्स को मैंने कहा, और जिन जिन बंदों ने छोड़ी है वीट, और चावल भी आपको कम करने होंगे, मस्ट आपको उसको कम करना होगा। जबकि हमारी आम पब्लिक ये कहते हैं कि जी चावल तो चलो वो डेंजरस है, जबकि गंदम ठीक। जी चावल फिर भी एज कंपेयर टू वीट जो है, राइस फिर भी बेहतर है, लेकिन हमें दोनों को छोड़ना होगा। हमें कोशिश करनी होगी कि वीट फ्री करें अपने आप को। ये शुगर का लेवल खुद ब खुद ठीक हो जाता है। आप अभी इमेजिन करो, आप अभी 100 ग्राम वीट जो है हमारा आटा है, इसका 360 कैलोरी है, और वाइट शुगर की 380 है। हम समझते 3-4 चपाती तो हमने खाई है नहीं, हमने एक बाउल भरा हुआ शुगर का खाया है। तो फिर हम कैसे हम कहेंगे हाँ जी आपकी डायबिटीज ठीक हो जाएगी? कोई नहीं सर। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही है। Absolutely right. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Thank you so much. Any other question? Any other question? Okay. If there is no question, उज़ैर साहब भी चले गए, अहमद उज़ैर साहब. Okay. Professor Rashid साहब, can you conclude today's session? Professor Rashid? Professor Rashid Mahmood? Okay, once again, thank you very much, Professor Luqman, once again, Dr. Imran, and especially Professor Mahmood Ayaz साहब, आप इस मसरूफियत में भी आपने हमें टाइम दिया. Thank you so much. Inshallah, we will meet you next week at 11 o'clock on the same topic. Thank you so Thank much. you. इंशाल्लाह। थैंक यू सर। Allah Hafiz everyone. ओके जी, थैंक यू, खुदा हाफिज।